to the. Actually, it is the second session, but this is the first session. Now, we are talking of well-being, family well-being. So, why family well-being is important? Number one. Number two, what is family well-being? कि परिवार का जो स्वस्थ होना या सुदृढ़ होना, अच्छा होना क्यों आवश्यक है? नंबर एक. नंबर दूसरा, क्या है? अब हम कह सकते हैं कि भाई हाँ, परिवार वेलबींग में है, परिवार जो है बहुत संपन्न है, सुदृढ़ है, सुखी है, या जो भी है. एंड व्हाट डज फैमिली वेलकम मीन्स? तो फैमिली वेलबींग का मतलब क्या है? तो ये जो सेशन है हमारा अंडरस्टैंडिंग फैमिली वेलबींग के ऊपर है. तो अगर the family is able to achieve well-being, so they should fostering quality care, development and support. अगर कोई भी परिवार अपने परिवार के सदस्यों को अच्छी सपोर्ट दे सकता है, अच्छा उनकी देखभाल कर सकता है, तो हम कहते हैं कि फैमिली जो है वो वेलबींग के अंतर्गत आती है. देन एनहांसिंग फैमिली रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट. जो भी हमारे पास में परिवार में संसाधन है, हम उनका किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, किस प्रकार से उनको हम संचालित करते हैं, ये सब चीजें अगर हम करने में सफल हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि भाई फैमिली वेलबींग है. देन प्रमोटिंग ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, कि अगर हम परिवार के अंदर उनको संतुलित आहार दे सकते हैं, संतुलित भोजन दे सकते हैं, जिस प्रकार की डाइट्स की उनको आवश्यकता है वो हम दे सकते हैं, तो हम कह सकते हैं वेलबींग है, फैमिली वेलबींग है. एंड देन लास्ट इज नथिंग नॉट बट द लीस्ट इज कम्युनिटी रेजिलियंस. If we are able to increase community resilience, we can say we are working towards family well-being. So for this session, I would like to invite Professor Nimeshji Desai, Director IBHAS, to chair the session. We have got with us Commander Shirang Bijur, President Parivar National Confederation of the Parents Organization, and CA Sanu Agrawal and CA Vaibhav Bhatnagar. And for this speaker is Ms. Priya Kapoor and Shweta Deshpande. So over to Dr. Nimeshji Desai, if he is there. And if no, he is not here, and okay. As well as CA Sanu and CA Vaibhav are also not available not at this moment. Okay. So, they will later join. But I would like to say, Commander Bijur sir, you can chair the session. Yeah. आप chair करिए sir. So it's all yours, sir. Yeah. Over to you, sir. So yeah, please sir, welcome you, sir. Who are all going to be the speakers? Can you just let me know the Priya Kapoor and Shweta Deshpande. And topic is impact of child's disability on parents' life satisfaction. Okay. Yes. I thought there was a topic which was strategy for family well-being at this time. Yeah, ji sir. Yes. That is the topic, isn't it? Yeah. Okay. Yeah. Thank you, Mr. Gupta and Manovikas, for first of all inviting me. It is always बहुत मुझे खुशी होती है जब भी मैं टीचर्स को या प्रोफेशनल्स को, स्पेशली द यंगर वंस, उनको एड्रेस कर सकूं, क्योंकि मैं हमेशा ये सोचता हूं कि आप ही हमारे सेक्टर को आगे लेके जाने वाले हैं. तो आपको जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी और जितनी ज़्यादा आपको उसमें मोटिवेशन होगी, उतना ही अच्छा हमारा सेक्टर चलेगा और उतना ही अच्छे हमारे बच्चों की देखभाल आगे जाके होगी. सो इससे मैं फिर आगे बढ़ता हूँ. आज का जो टॉपिक है दैट इज स्ट्रेटेजी फॉर फैमिली वेलबींग. सो वेरी गुड टॉपिक. आई एम श्योर आप में से कई लोग, some of you must be mothers and fathers also, because generally I have seen many special educators, many mothers, they also do special education courses and become professionals.
Not that the mother is not a professional, she is the best professional. I always believe that. तो मैं सबसे पहले फिर रिक्वेस्ट करूंगा प्रिया मैडम को. प्रिया जी आप स्टार्ट करिए अपने सब्जेक्ट पे. Yeah, Priya Kapoor and Shweta Deshpande. Priya ji, you are here. I have made you the co-host. Please unmute yourself. Priya Kapoor. I'm finding sir उनका ना वो unmute हो पा रही हैं or something. We can start with you and later on we can join. Okay. Okay. तो श्वेता देशपांडे मैडम आप स्टार्ट कर सकते हैं. श्वेता जी हैं. They are the co-presenter, मतलब joint presenter. Okay, अच्छा. Good morning, sir. Am I audible? Good morning. Great. Sir, just give me a second. I'm just adjusting the mic, please. Just give me a second. Please. Take your time. Good morning, sir. My name is Priya Kapoor, sir. I have presented a paper, so I'll just like to share my screen. Yeah, please. Sir, yeah. I've made you the co-host. You can present your screen. Yeah. Yes, sir. Sir, is my screen visible? Yes. Yes. Yes, sir. सर मैंने पेपर प्रेजेंट करा है, पेपर बनाया है जिसमें मैंने पेरेंट्स ऑफ टिपिकली डेवलपिंग चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर चिल्ड्रन का दोनों के पेरेंट्स का लाइफ सेटिस्फैक्शन मेजर किया है. एंड दिस इज अ लाइफ सेटिस्फैक्शन स्केल जो टूल था. इट्स डेवलप्ड बाय आवर इंडियन ऑथर्स. मैंने वो स्केल एडमिनिस्टर किया है एंड इट स्केल हैज 5 डोमेन्स. ये 5 डोमेन्स को चेक करता है, आपके हेल्थ, जॉब, मैरिटल स्टेटस, सोशल एंड इकोनॉमिक. इसमें मैंने जब किया था तो मैंने स्टडी में अपने 20 सैम्पल साइज 20 पेरेंट्स लिए थे जो नॉर्मल पेरेंट्स के टिपिकल डेवलपिंग चिल्ड्रन के पेरेंट्स थे एंड 20 मैंने बच्चे लिए थे जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर उनके पेरेंट्स थे. तो टोटल सैम्पल साइज वाज 40. देन सर रिजल्ट्स में देखा गया था कि देयर वाज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द मीन बिटवीन द टू ग्रुप्स एंड द ओवरऑल स्कोर सेट की इकोनॉमिक, हेल्थ एंड सोशल एस्पेक्ट्स जो थे वो ज़्यादा अफेक्टेड थे इन पेरेंट्स ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर चिल्ड्रन. इसका नीड्स स्टडी का ये था बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारी ज़्यादातर थेरेपीज जो होती हैं दोज आर लॉन्ग टर्म थेरेपीज जो हमारे पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ को बहुत अफेक्ट करते हैं. सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये एस्पेक्ट्स पता करें कि कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो हमारे पेरेंट्स को अफेक्ट करते हैं एंड अकॉर्डिंगली हम अपने पेरेंट्स को उसके लिए काउंसिल कर सकते हैं बिकॉज जब उनका मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा देन अकॉर्डिंगली वो बच्चे के लिए ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं. जी प्रिया जी. Sir, I can't hear you, sir. Sorry. प्रिया जी. हाँ जी. हाँ जी सर. So, okay. बिजूर सर. Sir, sorry, आपकी मुझे आवाज नहीं आ रही. I'm really sorry. Commander बिजूर सर. Yeah, please go on. Yeah. He has, I think, finished. Okay. Yeah. Okay. Fine. Good, Priya. I think you have put a very good effort in collecting this data. As I see from your slide, आपने यहाँ पे लिखा है parents of autistic children, their mean is 40.09 and parents of normal children 42.9. Yes, sir. So I am not surprised. In fact, यदि इनका low भी होता, normal children का low भी होता, तो भी I wouldn't have been surprised the kind of issues which we see with the children today. But it's fine. It's a very good indication, and I would like you to share your paper. Okay. You might have written down a paper on this, and if you can please share that with the participants, they may get a little more insight into that. Okay. So just one question. So where should I share the paper with? On the Manovikas? Because they will, Yes. You can just email us. We will put it into the website. It will be shared to among all. Okay. All right, sir. We'll do that. Thank you. And sir, just wanted to end up by saying this is just a preliminary study, and I would want to do more study on increasing my sample size and just see कि और कितना difference आता है. Yeah. So just Sure, definitely. Yeah. Good. Very good. Thank you so much, sir. And would Shweta also like to present something? So actually, Shweta ma'am is my mentor.
And so since our college is also running, so she's taking a lecture right now. So you are from which college? The Bharati Vidyapeeth. Bharti. Okay. Yeah, good. So I think our young speaker has made a commendable effort, और उन्होंने जो हमें बताया और जो उसको आगे बताने जा रहे हैं, I think it will make a great difference for all of us. अभी, is there any other speaker also today? No, sir. Now is everything is yours. Yeah, Sir. Yeah, Gupta sir, you want to say something? नहीं, मैं ये कहना चाहता था कि प्रिया जी से कि if you could share some of the questions and their responses in general, कि what type of questions were there, किस प्रकार के सवाल उन्होंने उनसे पूछे थे और क्या उनके जवाब मिले, तो and how does it affect their well-being? तो उनसे उनको I have the questionnaire. If you want, I can read out it to you. नहीं, क्वेश्चन आप कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं which are related with the strategies of family well-being, अगर उस प्रकार के कोई सवाल आपके हैं, 2, 4, 6 सवाल आप जो हैं वो बोल सकती हैं और उनके किस प्रकार के जवाब आपके पास में आए उनके बारे में आप बात करें. Actually, इसमें the answers has to be in your खाली yes and no में patients को आंसर करना था. So खाली उनसे सवाल पूछा गया था. They just have to say yes and no. So I would just read out some questions to you. क्या पति क्या घर पे आपकी अतिरिक्त समय हंसी खुशी से बीत जाता है? दिस वाज रिलेटेड टू सोशल, कि ज्यादातर समय क्या आपका घर में हंसी खुशी से बीतता है? क्या आप बच्चों के भविष्य के लिए पति पत्नी के झगड़े को भुला देते हैं? दैट वाज रिलेटेड टू मैरिज. क्या संतोष सभी धनों से ऊपर है? देन क्या आप अपने अधिकतर समय बिस्तर पर ही बिताते हैं? दिस वाज रिलेटेड टू हेल्थ सर. So these were some kind of related, some questions that were related to other different domains. Okay, very good. और ये सर्वे आपने कहाँ पे किया? दिल्ली में किया क्या? नहीं सर, पुणे में. अच्छा, ये पुणे में किया है. I am also from Pune. I am from Pune. Okay, great. Then we can interact more on this. Yes. Yeah. Good. Please put down your questions. If you have any questions, you can type it out. Or otherwise, I'll also take some time. And after that, you can ask combined questions. Myself and Priya both will answer you. Great. So I'll start off with my presentation. I just share the screen. Yes, sir. The topic which was given to me was strategy for family well-being. तो मैंने सोचा कि सिर्फ वेलबींग के बदले आई विल ऐड हैप्पीनेस आल्सो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ऑल ऑफ अस वर्क फॉर आवर हैप्पीनेस. पर हम ये देखेंगे कि वेलबींग और हैप्पीनेस में फर्क क्या होता है. दैट्स आल्सो इम्पोर्टेंट. सो यदि आप देखिए व्हाट इज हैप्पीनेस, वी ऑलवेज से इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड. तो आज हम देखेंगे कि ये स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है. एंड देन व्हाट इज वेलबींग. वेलबींग इज हाउ यू परस्यू योर लाइफ, time and relationships as a whole over a time. तो well-being is always over a time. आप कह सकते हैं कि हमारी फैमिली पिछले 10 साल से बहुत खुश है, या पहले 5 साल बहुत खुश थी, अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं. All those. So well-being is basically measured over a time, while happiness जो है, खुशी जो है, आप किसी चीज में भी खुश हो सकते हैं और बाद में हो सकता है आप थोड़े नाखुश भी रहें किसी और बात पे. तो two things are different, but yes, more happiness, the better chances of achieving a well-being. तो अभी आप यदि देखिए कि well-being में क्या क्या आता है. हेल्थ ऑफ बॉडी, मतलब हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स. इट इज नॉट ओनली पर्सन विद डिसेबिलिटी. इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, चाहे घर के अंदर के जो फैक्टर हैं या जो बाहर के फैक्टर हैं. कोविड बाहर का फैक्टर था, पर उसने हमें इंटरनली भी बहुत अफेक्ट किया. So that is how the well-being is defined. So अब मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूं जो कि आपने सबने देखा हुआ है. दिस इज तारे जमीन पर. इसमें आप यदि ये देखेंगे और सोचिए कि क्या ये फैमिली हैप्पी है. इज दिस फैमिली हैप्पी एंड व्हाट इज इट्स वेलबींग. देखिए आप, तो आप सभी एक ही आंसर देंगे कि ये फैमिली खुश नहीं है, और ना तो इसमें बच्चा खुश है, ना ही माँ खुश है, और ना ही बाप खुश है. तीनों लोग ऐसे लगते हैं खुश नहीं है.
पर आमिर खान ने इसमें इतने अच्छे एक्सप्रेशन दिखाए हैं, इसमें स्पेशली जो माता का इंप्रेशन दिखाया है वो इतना अच्छा है. शी इज एंग्री, शी इज फ्रस्ट्रेटेड, एंड शी रियली is getting angry with her husband for something, but she is unable to express it. Father doesn't want to spend time because he is fed up or he is impatient with his son. And now if you look at the 3 photographs of the son, what is he feeling? That is the most important thing for us. Now बड़े लोग तो फिर भी अपने आप को सुधार लेते हैं, कुछ देख लेते हैं, आप मोबाइल में जाके कुछ व्हाट्सएप देख लेंगे, फ्रेंड से बात कर लेंगे. Now, what will that child do who is getting such a treatment for 24 hours a day? What will be his state? If he doesn't go mentally unstable, that means he is extremely strong. That boy is extremely strong mentally. And that's why he is able to, वो झेल सकता है ये सब जो चीजें उसके ऊपर आज हो रही हैं. तो इससे एक चीज और हम देखेंगे आगे. इस पिक्चर के एंड में क्या हुआ था? Did it all change by end of the movie? ये पिक्चर शायद 2.5 घंटे की थी, और जब मैंने आपको ये सीन दिखाया, जब ये शुरू में ये जब सीन आ रहे थे, तो मेरी आंखों में भी पानी आ गया था. और वो जो आंखों में पानी आया था वो दुख का पानी था. पर एट द एंड ऑफ द मूवी जब वो बच्चा अपनी ड्राइंग लेके आता है, सबको दिखाता है, उसके माँ बाप इतने खुश होते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, मेरी आंखों में फिर पानी आया, बट वो खुशी के आंसू थे. तो अभी आप देखिए, विद इन 2.5 hours I went from one emotion of happiness or sad or pain emotion to the happiness emotion. So इसका मतलब तो यही हुआ. और थिएटर में तो कुछ हो ही नहीं रहा था, थिएटर में तो सिर्फ एक पिक्चर दिखाई जा रही थी, पर मैं वहां पे आंसू बहा रहा था, पहले दुख के और उसके बाद खुशी के. इसलिए कहते हैं कि हैप्पीनेस इज स्टेट ऑफ माइंड. आमिर खान ने मुझे वहां पे कुर्सी के ऊपर बिठा के ऐसा दिखाया कि मैं दुख से भी रो पड़ा, और ऐसा दिखाया कि मैं खुशी से भी मेरे आंखों में आंसू आ गए. सो इट इज अ स्टेट ऑफ योर माइंड. एंड हु इज द कैटलिस्ट? कैटलिस्ट का क्या मतलब होता है हिंदी में? तड़का. तड़का कहते हैं ना, आप सब्जी में जो तड़का लगाते हैं उससे सब्जी की सब कुछ चेंज हो जाता है. यदि आप मुझे एक दाल दे देंगे जिसमें नमक मिर्च और तड़का ना लगा हो, तो मैं बोलूंगा कि यार ये दाल तो किसी बीमार के लिए थी, मेरे लिए नहीं. और उसी में यदि आप एक बड़ा अच्छा वो तड़के वाली दाल जो हम कहते हैं वैसी बना के दे दें, सो आई विल बी सो हैप्पी. So who brought about this happiness? This is all of us, the parents, the teachers, the professionals, and the most important, the child. We all are the catalyst. And if someone can bring us together, हमें एक समझ दे दे कि हम कैटलिस्ट कैसे बन सकते हैं, so that will be my entire lecture today. When we say about strategy, लाइफ की जो स्ट्रेटेजी होती है वो हर बच्चे की, हर पेरेंट की, हर माँ की, हर बाप की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है. सो रियली आई कैन नॉट गिव वन स्ट्रेटेजी, देन आई विल बिकम गॉड. बट यस, आई कैन से हाउ वी कैन बिकम कैटलिस्ट इन द लाइफ ऑफ अ फैमिली टू मेक इट हैप्पी. तो वही मैं आज आपको अभी माई नेक्स्ट हाफ एन आवर और वरना जितना भी टाइम होगा उतने टाइम में मैं आपको ये सब बताने जा रहा हूँ. अभी देखते हैं, वापस आते हैं अपनी डिसेबिलिटी के ऊपर. हम जज करते हैं कि कोई बच्चा एबल है, कोई डिसेबल्ड है. हम कहते हैं कि ही इज फिजिकली डिसेबल्ड, वो चल नहीं सकता है, उसको सेरेब्रल पैल्सी है, फिजिकली डिसेबल्ड है. उसी तरह हम कहते हैं उसकी मेंटल एबिलिटी थोड़ी कम है, समझ नहीं सकता है, लर्न नहीं कर सकता है, लर्निंग डिसेबिलिटी जिसको कहते हैं. सिमिलरली एक न्यूरो डेवलपमेंटल होती है, जैसे मैंने जो सेरिब्रल पैल्सी का एग्जांपल दिया, जिसमें कि जो ब्रेन के सिग्नल्स हैं वो आपके अंगों को या आपकी मसल्स को ठीक नहीं पहुंचते हैं, तो उससे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी हो सकती है. उसमें इवन किसी को कम भी सुन सकता है, किसी को दिख भी नहीं सकता, बिकॉज फाइनली एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द न्यूरो सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन. लर्निंग एबिलिटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एबिलिटी. हम सब में एक एबिलिटी होती है जो कि हम सीखते हैं. एक बच्चा जो है वो पहले 1-2 साल तक अपने आप ही सीखता है. हम जो माँ बाप हैं, हम तो वी आर जस्ट काइंड ऑफ लिटिल कैटलिस्ट फॉर हिम.
हम उसके आगे एक खिलौना लगा देंगे, पर वो खिलौने के साथ वही खेलना सीखेगा। हम एक कुछ ऐसा आवाज का ऊपर बेल लगा देंगे, तो बेल को रिकॉग्नाइज करना तो वही सीखेगा, कलर्स तो वही सीखेगा। तो दिस इज ऑल लर्निंग एबिलिटीज। तो कई बच्चों में ये लर्निंग एबिलिटी भी शायद कम हो सकती है। और उसी तरह सेंसरी इंटीग्रेशन, जिसमें मोस्टली हमारे ऑटिज्म के बच्चे आ जाते हैं, उनको सब बाकी सब ठीक है, पर जो उनका मस्तिष्क है, दिमाग है, वो जितनी भी सेंसरी इनपुट्स आ रही हैं उनको ठीक इंटीग्रेट करके नहीं बता सकता। कभी कभी वो ठीक इंटीग्रेट करता है, पर जो आपकी इंटीग्रेशन है और उसकी इंटीग्रेशन है उसमें फर्क है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। एक बार मैं कहीं पे गया, होटल में गया, तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे गर्म पानी ला के दो। तो उसने मुझे एक बॉटल, जो कि विच यू आर सेलिंग फॉर ऑलमोस्ट 70 रुपीज, 5 स्टार होटल, एक बॉटल में गर्म पानी ला के उसने मुझे दिया। आई सेड बट आई नेवर वांटेड दिस टाइप ऑफ हॉट वाटर। आई वांटेड कि आपके होटल में अच्छा पानी मिलता है, आई एम श्योर यू आर यूजिंग आरओ फिल्टर एंड ऑल काइंड ऑफ फिल्टर्स, तो उसका पानी गर्म होता, वो मुझे आप दे देते। Was he wrong or was I wrong? Both were right in our own way. Similarly, a person with autism, he may understand something else while you meant something else. So that is again sensory integration. तो ये सब चीजें हम कहते हैं कि बच्चे में डिसेबिलिटी है, बच्चे में स्लो लर्नर है, all that we say, but we never say what is his ability. No, let me give you my own example. सॉरी, मैं अपनी एग्जांपल बहुत देता रहूंगा। व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड, तो मैं डीएवी स्कूल चंडीगढ़ में पढ़ता था। तो वहां पे ऑन द प्लेग्राउंड, इट हैड अ गुड बिग अच्छा प्लेग्राउंड था। तो वहां पे वी यूज्ड टू सी दी मिग्स, आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 60s की बात कर रहा हूँ। वी यूज्ड टू सी मिग 23s एंड मिग 21, जो तभी इंडिया ने रशिया से एक्वायर किए थे। तो सब आकाश में घूमते थे और हमें उनकी एक पूंछ में काफी व्हाइट कलर की मिलती थी, देखते थे हम। So we were all fascinated कि हमें तो जिंदगी में और कुछ नहीं बनना, बस मिग का पायलट बनना है। So मैंने 10th की और उसके बाद promptly after 10th they used to have this NDA का एग्जाम होता था। तो मैं देहरादून में गया, वहां पे सिलेक्ट हो गया और उसके बाद उन्होंने मुझे मेडिकल के लिए भेजा। मेडिकल में जाते ही उसने बोला भी आपकी तो आंखें वीक है, आप तो पायलट बन ही नहीं सकते। So as far as a fighter pilot was concerned, I was a disabled child or a person or a student at that point of time. Yes, मैंने भी नहीं छोड़ा, बाद में मैंने इंजीनियरिंग करके नेवी ज्वाइन कर ली, but of course I could never become pilot in my life. So that still remains a ache in my heart. तो डिसेबिलिटी हम सबको है किसी ना किसी बारे में। Only thing is, if you have a learning ability, तो आप उस डिसेबिलिटी को छुपा लेते हैं। मैं अभी एक और एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं आजकल मुझे क्या बोलते हैं, नाम नहीं याद रहते। आप मुझे 5 नाम बताएंगे, तो जब आप 5th नाम बताएंगे तो मैं पहला नाम भूल जाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसको किसी तरह अपनी स्मार्टनेस से छुपा देता हूँ, वो मेरी डिसेबिलिटी को कहीं पे लिख लूंगा या कुछ रट्टा लगा लूंगा दिल में, कुछ करके मैं मतलब बोल दूंगा। तो बिकॉज आई डोंट हैव ए लर्निंग एबिलिटी, डिसेबिलिटी, बट आई हैव मे बी मेंटल, मुझे अभी मेमोरी कम हो गई। सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, ईच वन ऑफ us has got some kind of disability, but we are able to either hide it or overcome it with our other abilities. So similarly, if we can help these children to overcome their disabilities, it may not be overcome to 100% extent, but even if 50% they can overcome it, especially the learning disability, so then they would be much happier in their life and the family's well-being will be much better. Now with all those abilities and disabilities, then there are other factors which also affect the family's well-being: poverty, caste, gender, illiteracy, and location. We are all very much familiar with this, so I will not explain this. We all know that each one of these factors, except gender, यदि आप अच्छे हैं, अच्छे घर में हैं, जहाँ पे जेंडर की रिक्वेस्ट है, दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, then that is not a problem. But poverty, caste, illiteracy and location I am saying because there are certain locations where they have inherent difficulties, चाहे उसमें safety हो, security हो, कुछ
साल 2 साल में एक बार बाढ़ आ जाती हो, ऐसे कई चीजें हो सकती हैं. सो दीज आर अगेन फैक्टर्स विच एड टू दोज एबिलिटीज और डिसेबिलिटीज. सो दीज आर द बैरियर्स एंड ऑब्स्टेकल्स. अभी हमने डिसेबिलिटी के बारे में देखा, पर वो डिसेबिलिटी, जब तक डिसेबिलिटी रहेगी उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है. बच्चा धीरे धीरे उस डिसेबिलिटी को ओवरकम करना सीख सकता है. जैसे मैंने अभी आपको बताया, यू एज टीचर्स, वी एज पेरेंट्स, वी कैन लेट हिम लर्न हाउ टू ओवरकम दैट डिसेबिलिटी बाय डूइंग समथिंग एल्स. परंतु मेजर प्रॉब्लम व्हाट दैट चाइल्ड फेसेस इज व्हाट वी सॉ इट इन द मूवी तारे जमीन के में, जो हमने सीन देखा था, एटीट्यूड. एंड दैट एटीट्यूड स्टार्ट्स फ्रॉम द फैमिली. वहां पे हमने फैमिली का एटीट्यूड देखा. अभी आप सोचिए, यदि आप उस बच्चे की जगह होते और आपको 12 घंटे दिन में जब भी आप जाग रहे हैं तो आपको यही कहा जाता, तुम अच्छे नहीं हो, ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, ये क्या किया, वो क्या किया, ऐसे कैसे कर दिया. what kind of attitude you are facing in the family. And this is the family which really wants to love that child. It's not a family जो उसको अपने ऊपर भार समझती है. This is a well groomed happy family which wants to love that child. They sincerely feel कि ये बच्चा अच्छा हो जाए, पर उनको ये समझ ही नहीं है कि ये कैसे अच्छा होगा. इसलिए वो उसी उलझन में पड़े हुए हैं और एक दूसरे को डांटते रहते हैं, आपस में भी झगड़ते रहते हैं. मैरिटल डिस्कॉर्ड हो जाती है, मतलब हस्बैंड वाइफ में भी झगड़ा हो जाता है, कई लोग तो डिवोर्स भी हो जाते हैं. तो ये सब चीजें, they are all attitudes which are the barriers. Then second, another important barrier is access. एक्सेस है कि आपको वो फैसिलिटीज, चाहे वो फिजिकल एक्सेस हो, यदि कोई व्हील चेयर बाउंड है तो वो ऊपर नहीं जा सकता है, कलेक्टर का ऑफिस पहली मंजिल पे लिफ्ट नहीं है तो वो नहीं पहुंच सकता होता. तो उसी तरह यदि स्कूल में बिगेस्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय द गर्ल्स विद डिसेबिलिटी, उनके यदि वॉशरूम जो है गर्ल्स के लिए, यदि वो ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है और वो बेचारी ग्राउंड फ्लोर पे है, तो उसको पता नहीं मैं क्या करूं. आई हैड वन वेरी I would say distinguished person whom I met about 3 years back. She's a lady and she has got cerebral palsy, but she's doing very well. मैंने उसको वैसे ही पूछा कि ये बताइए कि आपने स्कूल में, she has done MA, PhD, everything. तो मैंने कहा आपको स्कूल में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज की थी? तो उसने बोला मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी वॉशरूम की. I used to drink less water throughout my childhood just to avoid going to washroom. पूरी उसने कहती है कि 12 साल मैंने जिंदगी के ऐसे बिताए हैं कि मुझे उस 8 घंटे वॉशरूम ना जाना पड़े. That is what is the excess all about. Otherwise we can keep talking about various other excesses. Then social. बहुत पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि बच्चे को साथ ही नहीं लेके जाएंगे. किसी की शादी में जाना है तो it will become very awkward. ये पता नहीं शोर मचाएगा, उधम करेगा, क्या उधर सीन क्रिएट कर देगा, इसको नहीं लेके जाए. वो बच्चे को पता है कि शादी नाम की चीज क्या होती है. यू हैव नेवर एक्सपोज्ड हिम टू द सोसाइटी, टू द सोशल फंक्शंस. तो नेचुरली जब अगली बार अपने भाई के शादी में जाएगा जहां पे आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, तो वो ऐसे लपकेगा खाने के ऊपर जैसे उसने कभी देखा ही नहीं था खाना. सो सोशल, एंड nobody can learn, nobody can teach these social etiquettes. These have to be acquired. Now you are not giving chance to that person to acquire these social etiquettes, और उसके बाद आप बोलेंगे जी इसको तो बिल्कुल etiquettes नहीं, इसको तो learning disability है, person with intellectual disability है, इसलिए इसको कुछ नहीं पता. ये नहीं, ऐसा नहीं था. आपने उसको कहीं जाने ही नहीं दिया, आपने उसको घर से बाहर ही नहीं कभी निकाला, तो बेचारा कैसे सीखेगा. Then final is the barrier is the legal capacity. हम सोचते हैं कि अच्छा ये पढ़ लिख नहीं सकता, तो इसके नाम पे हम इसके पैसे कैसे रखेंगे, इसका बैंक अकाउंट कैसे खोलेंगे. यदि मेरे पास 2 घर हैं और 2 बेटे हैं, तो मैं इस बेटे को थोड़ी दे दूंगा, क्योंकि वो उसकी तो लीगल कैपेसिटी, वो क्या करेगा, कोई उसका घर उसे साइन करा के ले जाएगा. सो ये सब गलत धारणाएं हमारे दिल में है. हालांकि सरकार ने 100% लीगल कैपेसिटी दी है पर्सन विद डिसेबिलिटी. वो बैंक अकाउंट खोल सकता है, वो घर भी इनहेरिट कर सकता है, हर एक चीज जो आप और मैं कर सकते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी भी कर सकता है. पर हम चाहते हैं कि नहीं, उसको नहीं देना, बड़े भाई को दे देंगे और उसके बाद
आपके हमारे जाने के 10 साल के बाद उसको देखना छोड़ देगा, एंड द younger brother will be on the road. So these are the barriers. So these barriers and those obstacles which I showed you earlier, they are a very lethal combination. They are like a bomb in the life of a person. तो मैंने इसलिए आपको बताया कि जब आप किसी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं, तो जैसे मैंने बताया, मैं आपको स्ट्रेटेजी मैं नहीं आपको बताने वाला हूं, पर मैं आपको ये तड़के में क्या क्या जाने वाला है, क्या क्या मसाला पड़ता है, कितना नमक, हींग, ये वो पड़ेगा, वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद तड़का आप बना लेना, कैसी दाल होगी आपके आगे। सो लेट्स आल्सो नो अबाउट कितनी डिसेबिलिटीज हैं। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो, बट आई एम जस्ट रिपीटिंग, यदि एक भी कोई ऐसा है जिसको नहीं मालूम है। अभी हमारा जो RPWD एक्ट आया है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट ऑफ 2016, उसमें 21 डिसेबिलिटीज डिफाइन की गई हैं शेड्यूल में। और जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे लोकोमोटर में 6 डिसेबिलिटीज हैं और विजुअल में 2 हैं। 2 इसलिए कि एक फुल ब्लाइंड, एक जिसको कहते हैं थोड़ा बहुत कम दिखता है उसको, वो सेकंड होती है। हियरिंग में एक बिल्कुल हियरिंग जिसको बिल्कुल डेफ है, दूसरा जो थोड़ा सा कम डेफ, थोड़ा सा सुनता है उसको। और देन स्पीच एंड लैंग्वेज। अभी इंटेलेक्चुअल में यदि आएंगे तो इंटेलेक्चुअल जिसको पहले मेंटल रिटार्डेशन कहते थे, अभी वो कहना अच्छा नहीं है, पर इसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं। इट इज बेसिकली लर्निंग डिसेबिलिटी। वो बच्चा सीख नहीं सकता जैसे बाकी बच्चे सीख लेते हैं। फिर ऑटिज्म एंड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, आप सबको मालूम है इसके बारे में। एंड स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ये चीज जो अभी आगे उभर के आ रही है और बहुत ज्यादा बच्चे इसमें तंग हैं, तो ये भी एक चीज आगे उभर के आ रही है। और आप एज ए स्पेशल एजुकेटर, यदि आप स्पेशल एजुकेटर हैं, तो आपका इसमें बहुत बड़ा रोल आगे बनने वाला है। उसके बाद मेंटल बिहेवियर में मेंटल इलनेस है। देन देयर आर सम डिसेबिलिटीज अबाउट ब्लड डिसऑर्डर, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल, और उसी तरह कुछ क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसीजेज हैं, पार्किंसन वगैरह। एंड फाइनली 21वीं जो डिसेबिलिटी है, दैट इज मल्टीपल डिसेबिलिटी, जिसमें कहीं पे भी यदि 2 या 3 डिसेबिलिटी एक बच्चे को हो या आदमी को हो, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल डिसेबिलिटी। सो ये 21 डिसेबिलिटीज हैं। We should all know about it. We should be all aware about it. इसमें एक चीज मैं और आपको बता देता हूँ यहीं पे, कि जब कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेने जाता है तो उसमें ये डिसेबिलिटी का नाम लिखा जाता है। तो जब नाम लिखा जाता है उसके साथ एक परसेंटेज भी दी जाती है। यदि 40% एंड अबव है तो आप एक बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आ जाते हैं। जो भी बच्चे को सर्टिफिकेट मिलेगा 40% एंड अबव, ही विल बी कंसीडर्ड एज बेंचमार्क डिसेबिलिटी। और उसको सरकार की जितनी भी कंसेशंस हैं, रिजर्वेशंस हैं, जो है, सबके लिए वो एप्लीकेबल हो जाता है। पर जिसकी 40% से नीचे रहती है डिसेबिलिटी, वो भी ही विल बी कंसीडर्ड एज ए डिसेबल्ड, बट ही विल नॉट बी गिवन रेलवे कंसेशन, ही विल नॉट बी गिवन जॉब रिजर्वेशन। पर उसको जो लीगल कैपेसिटी है, जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन है, ये सब चीजें उसके लिए लागू हैं। तो ये थोड़ा आप ध्यान में रखिए कि जब भी कोई पेरेंट आपसे बात करता है कि मुझे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेना है, आजकल UDID कार्ड बन गया है उसके लिए, तो उसको आप जरूर बताइए कि उसमें परसेंटेज और डिसेबिलिटीज है मस्ट। अभी मैं आपको थोड़ा सा, सिंस यू आर ऑल प्रोफेशनल्स, सो आई थॉट दैट आपने स्टैटिस्टिक्स भी देखा होगा, सुना होगा, बट आई थॉट CRE पॉइंट में ये भी एक पॉइंट आप थोड़ा जान लेंगे तो बहुत अच्छा है कि लास्ट सेंसस जब हुआ था 2011 में, अभी 2021 में सेकेंड सेंसस होने वाला है, शायद वो डिले हो जाए, पर उसमें ये बताया गया था कि 2.24% पॉपुलेशन इन इंडिया हैड सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटी। और यदि आप देखें, रूरल में थोड़ी ज्यादा है, अर्बन में थोड़ी कम है, मेनली बिकॉज ऑफ आइदर प्री नेटल, पोस्ट नेटल, ड्यूरिंग नेटल, ऑल दिस, उसमें कभी डिसेबिलिटीज हो जाती हैं। फिर हाइजीन थोड़ी रूरल में कम होती है। वो सब चीजें मिलके आप देखिए तो रूरल में थोड़ा ज्यादा है और अर्बन में कम है। बट यू विल आल्सो फाइंड दैट मेल्स आर मोर लाइकली टू बी born with the disability than the females. That is a nature's factor. तो ये मैंने सोचा आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। और इसमें एक और चीज है, जैसे आप देखेंगे कि हियरिंग, सीइंग मींस साइट, स्पीच, मूवमेंट, वो भी एक बताया गया है कि व्हाट इज द डिसेबिलिटी। तो मेंटल इलनेस इज अबाउट 3%,
और मेंटल रिटार्डेशन इज ओनली अबाउट 6%, दो तब ऑटिज्म नहीं था, जब ये की गई थी, सर्वे किया गया था तो सिर्फ 7 डिसेबिलिटीज थी। तो इसलिए हमें ऐसे लगता है कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है दैट शुड बी मच हायर देन व्हाट इज प्रोजेक्टेड हियर। पर उससे भी ज्यादा मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाहूंगा, वो है कि यदि आप देखिए कि पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन में डिसेबिलिटी कितनी है, तो अभी आप यदि यूएसए में देखिए तो ऑलमोस्ट 13, 14, 15% है। यूके में देखें तो वहां पे ऑलमोस्ट 23% है। जो डार्क ब्लू है वो फीमेल्स के लिए है और लाइट ब्लू है वो मेल्स के लिए है। तो आप देखेंगे कि एडवांस कंट्री में और डेवलप्ड कंट्रीज में फीमेल्स आर, देयर आर मोर फीमेल्स विद डिसेबिलिटी देन मेल्स। इफ वी आर हैविंग ए इंटरैक्टिंग सेशन आई वुड आस्क यू कि क्यों है ऐसे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। कनाडा में देखिए तो वहां पे भी फीमेल्स की बहुत ज्यादा, उनकी 15% है और मेल्स की जो डिसेबिलिटी है 12.5%। और इतनी ज्यादा डिसेबिलिटी क्यों है? अभी आप यदि अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में देखेंगे, मलेशिया, इंडोनेशिया, इंडिया, अफगानिस्तान वगैरह, यदि आप ये देखेंगे तो बहुत कम है डिसेबिलिटी। तो ये क्या चक्कर है? ये चक्कर है कि इसमें उन्होंने those who acquire disability due to age वो भी इसमें शामिल किया हुआ है। इसका मतलब यूके में जितने लोग लेट्स से 60 इयर्स से ऊपर हैं, 70 इयर्स के ऊपर हैं, कुछ डिसेबिलिटी हो गई है, उन सबको इसमें डाला गया है। एंड वी ऑल नो फॉर अ फैक्ट वर्ल्ड ओवर दैट द longevity ऑफ फीमेल्स इज मोर देन longevity ऑफ मेल्स। तो क्योंकि फीमेल्स आर मोर बिटवीन लेट्स से 90 to 100 इयर्स कैटेगरी, तो उसमें ज्यादा डिसेबिलिटी है। तो इसलिए ये डिसेबिलिटी ऐसे आई है। मैं आपको थोड़ा ज्यादा दिखाता हूं इसमें। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है लेफ्ट साइड में जो ग्राफ है वो कहता है कि 85 इयर्स एंड अबव की क्या डिसेबिलिटी है। टोटल मिला के उसमें ये जो लाइट पिंक कलर है वो टोटल दिखाता है। इट इज 58.2% ऑफ द पर्संस हु आर 85 इयर्स एंड अबव इन द डेवलपिंग कंट्रीज। ये पूरे डेवलपिंग कंट्रीज का इकट्ठा एक ग्राफ है जो WHO ने पब्लिश किया हुआ है। तो वो उनको कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी है। अच्छा, यहाँ पे जो डिसेबिलिटी है उसमें जैसे यदि उनको मेंटल डिसेबिलिटी है, सिजोफ्रेनिया है या कुछ है, या उनको पार्किंसन डिसीज है, या उनको वो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते हैं, दे कैन नॉट क्लाइंब द स्टेयर्स, दे आर आल्सो कंसीडर्ड एज डिसेबल्ड। तो ऐसे मिला के आप देखें 58%। यदि आप 75 to 84 एज देखें तो उसमें 38%, 38.8% जो लोग हैं वो they have got some disability. And similarly if you take the age from 65 to 74 जिसमें मैं भी आता हूँ, तो हमारे यहाँ भी उसमें कह रहे हैं कि 22.5। I feel in India यदि आप बोलें कि मूवमेंट इज आल्सो डिसेबिलिटी, मैं यदि स्टेयर्स नहीं चढ़ सकता तो वो भी एक डिसेबिलिटी है, तो विल बी एटलीस्ट 30% इन इंडिया। तो ये सब जो डिसेबिलिटी फिगर्स हैं दे आर नॉट काउंटेड इन आवर डिसेबिलिटी survey or in statistics. That's why we are low and that's why the developed countries are higher. They follow another system called Washington survey system. ये आप कभी, मैंने इसलिए आपको बताया कि as teachers and professionals if you want to know more about it go and Google Washington survey, तो उसमें आपको पता चलेगा कि वो कैसे सर्वे करते हैं और हम कैसे सर्वे करते हैं। Sorry, I digressed a little bit, but many places I feel that we need to know. Now this is going to affect the family also. Now this graph is very important. Now I am coming in 64 and 75 years category. So naturally there is 30% chance that I will also have a disability. Now how do I take care of my son who is 40 years old? So that means if I have not taken care of my son, I have not really looked after his well-being in the younger age, then the well-being of combined family is going to be at perils in my later age. Similarly, my wife also, she cannot handle him. यदि हमने उसको बात लेना नहीं सिखाया है और यदि अभी हमें उसको बात लेना पड़ेगा तो क्या हालत होगी? हम तो नहीं दे सकेंगे अभी बात।
यदि हमने उसको बिना किसी का हाथ पकड़े चलना नहीं सिखाया है, तो अभी यदि वो हमारा हाथ पकड़ेगा एंड ही इज इन द प्राइम, ही इज यंग एज, तो हमारा हाथ तोड़ देगा वो पकड़ के. तो ऑल दीज थिंग्स आर connected with the well-being of the family. The parents are going to grow old. They are going to acquire some kind of, I won't say disability, but some kind of handicap, I can put it. चला नहीं जाएगा या घूमा नहीं जाएगा, जो वो चाहता है वो हम नहीं कर सकेंगे उसके लिए. तो उसके लिए हमें शुरू से ही उसको तैयार करना पड़ेगा. So now let's come back to the strategy of happiness and well-being of a family. First and the most important, in fact you may say कि नहीं ये कैसे इसने ऐसे कैसे बोल दिया, but that is a hard fact. Most important point is health of parents. यदि parents healthy हैं तो पूरी family healthy है. यदि parents healthy नहीं है तो आपकी पूरी family खुश नहीं है. Whether it is mother, whether it is father, it's a hard truth. Everyone, especially आप में से बहुत माताएं होंगी यहाँ पे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ठीक है, आप you like to do all kind of sacrifices for your family. Yes, बहुत अच्छी बात है, और especially Indian mothers में तो ये बहुत ही तरीका रखा गया है, परंपरा चलती आ रही है. But do take care of your health. बिकॉज आपके चारों तरफ पूरी फैमिली घूमती है. स्पेशली द चाइल्ड विद डिसेबिलिटी, आप ही उसके लिए सब कुछ है. जब तक आप ठीक हैं तब तक उसकी भी देखभाल अच्छी होगी, उसके झगड़े नहीं होंगे और उसकी बाकी सब परवरिश होगी. सो हेल्थ ऑफ पेरेंट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. नेक्स्ट कम्स द मेकिंग द पर्सन विद इंटेलेक्चुअल. यहाँ पे मैंने IDD लिखा है बिकॉज परिवार एक्चुअली डील विद ओनली इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी. आप इसको पूरा पर्सन विद डिसेबिलिटी भी समझ सकते हैं. मेकिंग द पर्सन विद डिसेबिलिटी लेस डिपेंडेंट. आई एम नॉट सेइंग मेक हिम इंडिपेंडेंट, बिकॉज नन ऑफ अस इज इंडिपेंडेंट. यदि कोई कहता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, तो द हाउसवाइफ मेनी टाइम्स इज डिपेंडेंट ऑन हर हस्बैंड फॉर सैलरी, फॉर मनी, एंड द हस्बैंड इज ऑल द टाइम डिपेंडेंट फॉर फाइंडिंग व्हाट इज वेयर इन द हाउस, for getting good food, for taking care of children. He is 100% dependent on his wife. So I am saying make that child less dependent. Less dependent में क्या आएगा? जो चीज हम independently करते हैं, we go to the washroom and do all our things independently. So try and make it. That is the first and the foremost for the well-being of a family. Nothing else matters, whether he went to school or not, whether he is going for a workshop or not. Nothing else matters other than his ADLs, what you all know, what is ADL. So make him less and less dependent. You cannot make anybody 100% independent. Okay. Then the third and equally important is experience of real life situations. Again, very important. यदि आप उसको socially एडेप्टेबल बनाना चाहते हैं तो आपने उसको बाहर लेके जाना है, आपने उसको पार्क में लेके जाना है, आपने उसको कजिन ब्रदर की शादी में लेके जाना है, और आपने उसको दादाजी के फ्यूनरल में लेके जाना है. You have to take him and let him experience like a normal child. In fact, he need to get more exposure than a normal child, because a normal child एक बार फ्यूनरल में जाएगा तो उसको समझ आ जाएगी कि क्या होता है, क्या हुआ और कैसे हुआ. But this boy who has got learning disability may have to be he may go twice to understand that much कि क्या हुआ था, और still he may come back and ask you questions कि अभी दादाजी नहीं उठेंगे, वो दादाजी को जला क्यों दिया, all those. So it is high time that you please tell parents that they have to take him to all real life situation. यदि झगड़ा हो जाता है माँ बाप के अंदर, they need to explain him later कि हमारा इसलिए झगड़ा हुआ था, ये ठीक था, ये गलत ठीक नहीं था. और so everything he must understand because he has got learning disability. So यदि आप ये उसको नहीं बताएंगे तो बेचारा कुछ नहीं सीख सकता. Then involve siblings, relatives and trusted friends. Again, very important. Most of the houses or homes where there is a child with intellectual disability, they try to hide him. नहीं उसको आगे मत लेके आओ. I have seen houses where even the siblings don't interact.
द पेरेंट्स कहते हैं ठीक है वो अलग है, उसको अलग रहने दो, तुम अपना करो, बड़े को कहते हैं, या जो ठीक है उसको कहते हैं। प्लीज ही हैज टू इंटरेक्ट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपके बाद जो भी जितनी भी देखभाल करनी है वो उसी ने ही करनी है। और उसकी जो फ्रेंडशिप है, कोई भी आदमी इस दुनिया में बिना फ्रेंडशिप के, बिना कंपनी के नहीं रह सकता। यस, अमंग अस देयर आर इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स। मैं जब शादी में जाता हूं तो मैं जनरली 1-2 लोगों से बात करता हूं या 3-4 लोगों से बात करता हूं, बट बिकॉज आई एम क्वाइट इंट्रोवर्ट। मेरी वाइफ जब शादी में जाती है तो 100 लोगों से बात करती है, 100 लेडीज से और 50 जेंट से बात करके पूरी खबर उस शहर की लेके आ जाती है, बिकॉज शी इज वेरी एक्सट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट सब लोग होते हैं, आपका भी बेटा हो सकता है इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, पर उसको लेके जाइए शादी के अंदर, लेट हिम सिट, लेट हिम आस्क इवन ए फनी क्वेश्चन, डजंट मैटर। यदि द अदर पर्सन whom is asking that question is not intellectually disabled, then he will answer him properly. यदि आंसर नहीं करता, if you feel that, then you say you are there to intervene. Okay, the next one is signs of inappropriate behavior. Never let him go or let him get away with inappropriate behavior because he is person with intellectual disability or person with learning disability. Yes, but provided you have taken care of the first 4. But okay, again I'll say that the golden principle is you have to point it out, you have to make him understand. Don't give him that concession to go inappropriate. I have seen parents, the best of even परिवार के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, उनके घर में एक बार देखा तो बेटा अपने बाप को मार रहा है, थप्पड़ मार रहा है, मतलब, and the son is 50 years and the father is 80 years. Imagine, because this inappropriate behavior was not stopped. And again I am saying, आगे लिखा है get help. There are instances where you may not be able to do it yourself. You have to get counseling, you have to give him medicine, all kind of things you have to take help. But inappropriate behavior, you cannot let it happen in your house. That's important for the family's well-being. And last but not the least is join and form parent organization as a family unit. Here I am not promoting परिवार, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब लोग परिवार के मेंबर बन जाइए, पर कहते हैं ना कि यदि आप दुख बांट लो तो वो दुख एक्चुअली बढ़ जाता है। You will always have some time when आप लो हो जाएंगे कि अरे मेरा बेटा ऐसे है, इसको ये नहीं आता, आज ये कंप्लेंट आ गई। When you have some friends, likewise friends, देन आपका दुख आप बांट सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, कुछ आपको रेमेडी भी मिल सकती है। द बेस्ट एग्जांपल इज देयर इज समथिंग कॉल्ड अल्कोहलिक एनोनिमस। एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि जो शराबी लोग हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, और उस अल्कोहलिक एनोनिमस उनको कुछ नहीं करती, वो बस आपस में बात करके किसी तरह अल्कोहल को छोड़ सकते हैं, शराब छोड़ सकते हैं। तो उसी तरह ये है, यहाँ पे आप अपना दुख बांट सकते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी बात कर सकते हैं। देयर विल बी ऑलवेज मदर्स हु विल बी प्रोफेशनल्स आल्सो, वो आपको हेल्प करेंगी। और आप संस्थाएं भी बना सकते हैं। हमारे परिवार में जो 300 संस्थाएं हैं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर स्टार्टेड बाय द पेरेंट्स, एंड दैट्स व्हाई द परिवार इज देयर टुडे। सो प्लीज डू ऑल दीज थिंग्स, दिस इज द स्ट्रेटेजी। आई एम नॉट सेइंग स्ट्रेटेजी, बट दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजी। नो मिक्स एंड मैच तो आपको बनाना पड़ेगा, या पेरेंट्स को बनाना पड़ेगा, स्पेशल टीचर को बनाना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन द चाइल्ड, हाउ ओल्ड इज ही। तो मुझे लगता है राइट साइड का वो सर्कल जो है आपको दिख नहीं रहा है, तो वहां पे भी यही चीज दिखाई गई है। बेसिकली उसमें एक दो चीजें जो लेफ्ट साइड पे अभी आप देख रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट। द पेरेंट्स हैव टू डू फाइनेंशियल प्लानिंग कि हमारे बाद इस बच्चे को कौन देखेगा, पैसा कहाँ से आएगा। इट इज समथिंग लाइक आप नॉर्मल बच्चे के लिए भी आजकल फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है। इसने यदि इंजीनियरिंग में जाना है, मेडिकल में जाना है, अमेरिका जाना है, या इसने अपनी एक दुकान खोलनी है, या इसने आर्टिस्ट बनना है, तो क्या करना है। उसके ऊपर एक और प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सच चिल्ड्रन, विच इज आफ्टर अस प्लानिंग। हम जब नहीं रहेंगे या हम वो ओल्ड एज में चले जाएंगे, जो मैंने आपको ग्राफ दिखाया था, जब हम उसमें चले जाएंगे तो क्या होगा, इसका कहाँ पे रहेगा, घर में रहेगा या किसी
ग्रुप होम में रहेगा, रेजिडेंशियल सेंटर में रहेगा, कौन देखभाल करेगा, वो रेजिडेंशियल सेंटर आपने सिलेक्ट किया है कि नहीं. सो एज यू मैच्योर इन एज, after us planning becomes very important, and that this whole thing will really define your strategy for happiness and well-being of the family. अभी मैं इसमें से कुछ components आपको describe करूंगा. Actually just to talk about this I take almost 2 days for this, but मैं इसमें थोड़े से जो important components हैं उनके ऊपर सिर्फ आपके साथ आज बात करूंगा. How much time do I have? गुप्ता जी नहीं, आप सर अभी है 15-20-25 मिनट हैं अभी. अच्छा 20-25 मिनट हैं. ओके, नाउ विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज स्ट्रेटेजी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी. अभी तक हमने फैमिली की स्ट्रेटेजी देखी. नाउ पर्सन विद डिसेबिलिटी की स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अलग है, बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द चाइल्ड और ए स्टूडेंट और ए एडल्ट. Now, if he is a child less than 6 years, then the most important thing in this world for him is early intervention care. Since you are all professionals, I am sure you all know about brain plasticity. इसको neuroplasticity भी बोलते हैं. मैं आपको 30 seconds में explain करूंगा कि हमारे ब्रेन में, हमारी पूरी बॉडी में ऐसे है कि यदि एक पार्ट फंक्शन नहीं कर रहा हमारा ब्रेन का, यदि हम उसी चीज को दोहराते रहें, जिसको थेरेपी कहते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी कहते हैं, यदि हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी देते रहें बच्चे को, स्पेशली यंग एज में, तो कोई और पार्ट ऑफ द ब्रेन उसको करना शुरू कर देगा. नॉट 100%, बट लेट्स से 30%, 50%, 80%. उसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी. तो इसीलिए अर्ली इंटरवेंशन का बहुत महत्व है ये बच्चों के लिए. 1 मिनट. अर्ली इंटरवेंशन का बहुत महत्व है. ये आप उसके लिए करिए यदि उसकी एज है, पर यदि वो 12 साल तक का भी है, ये नहीं है कि जो ब्रेन प्लास्टिसिटी और न्यूरोप्लास्टिसिटी खत्म हो जाती है. इवन मेरी एज में भी थोड़ी सी प्लास्टिसिटी तो है, पर बहुत कम है. तो यदि वहां पे 6 इयर्स तक यदि 70% है या 60% है, तो 12 साल में वो शायद 20% होगी. बट अर्ली इंटरवेंशन नीड्स टू बी टेकन केयर. और आपको ये जान के अचरज होगा, अचरज नहीं खुशी भी होगी, कि हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी आई है, जिसमें कि बोला गया है कि बच्चे जो हैं वो 3 साल से उनकी पढ़ाई का मतलब जो हम पढ़ाई समझते हैं वो नहीं, पढ़ाई का मतलब है उनकी देखभाल, एजुकेशन, वेलबींग शुरू होगी. और उसमें ये अर्ली इंटरवेंशन और बाकी जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इसके ऊपर बहुत महत्व दिया गया है. उन्होंने बोला है कि 3 से 8 साल तक, ऑलमोस्ट फॉर 5 years, द चाइल्ड इज गोइंग टू गो थ्रू whatever early intervention he requires, whatever experiential learning he requires. There will be no books. तो वो आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थोड़ी पढ़िए, पहले 3-4 पेज पढ़िए, पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. और उसमें स्पेशल एजुकेटर्स का भी बहुत ज्यादा योगदान रहेगा. देन इंक्लूसिव और स्पेशल एजुकेशन, जैसे अभी मैंने बोला कि इंक्लूसिव एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन दोनों अपने उसके ऊपर ठीक है. किसी के लिए इंक्लूसिव बहुत अच्छी एजुकेशन है, स्पेशली दोज हु आर हाई फंक्शनिंग, और जो थोड़े से लो फंक्शनिंग है, जो अभी नहीं समझ सकते हैं, सोशली अडेप्टेबल नहीं है, उनके लिए स्पेशल एजुकेशन बहुत अच्छी है. बट लेट मी आल्सो से हियर, लोग कहते हैं नहीं सिर्फ इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए. हमारा जो राइट्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है, उसमें सेक्शन 31 says very clearly that it is the parents or the child's choice whether he wants to go for inclusive education or special education. The act does not say that he should only go for inclusive education. This all you all must know about this. Then self advocacy training and persona. सेल्फ एडवोकेसी ट्रेनिंग का मतलब यह है कि वो बच्चा अपने आप को समझे. जैसे आपने देखा होगा कि जैसे ही बच्चा 6, 7, 8, 10 साल का हो जाता है, तो वो माँ बाप के ऊपर इतना डिपेंडेंट नहीं रहता. 16, 14, 15 साल के बाद तो बिल्कुल ही नहीं रहता. 18 साल के बाद तो वो देखना भी नहीं चाहता माँ बाप. तो ये क्यों ऐसे होता है? बिकॉज ही डेवलप्स हिज ओन पर्सोना. आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर लेते हैं, आपको पता चल जाता है कि आप में कौन सी खूबियां हैं और कौन सी नाखूबियां हैं. तो वही चीज इनको भी डेवलप करवानी है.
उसके लिए हम कहते हैं सेल्फ एडवोकेसी ट्रेनिंग. आई विल टॉक लिटिल मोर ऑन द सेल्फ एडवोकेसी ट्रेनिंग बिकॉज दिस इज व्हाट वी हैव नॉट बीन एक्सपोज्ड टू मच इन योर बीएड और जो भी आपने स्पेशल एजुकेशन की है. Then skill building and achieving his potential, you all know about it. Then adolescence issues and occupation. Now this is again important, but you know about it because as the person becomes adolescent, he will have sexuality, he will have many other distractions, he will get hooked to mobile like other children. But what I seen is उनका माँ बाप का दूसरा बच्चा तो 24 घंटे में यदि 8 घंटे मोबाइल देखेगा तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 16 घंटे भी देखा तो फर्क, पर इसने 2 घंटे देखा तो बोलेंगे देखो मोबाइल ही देखता रहता है. ऐसे नहीं है. प्लीज कंपेयर हिम विद योर अदर सिबलिंग, मेन स्ट्रीम सिबलिंग, एंड देन ओनली कमेंट ऑन हिम. उसका भी दिल उतना ही करता है मोबाइल देखने के लिए जितना आपके दूसरे बच्चों को करता है. सो ऑक्यूपेशन इज इंपॉर्टेंट. देन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इनहेरिटेंस, इसके बारे में मैंने पहले भी आपसे थोड़ी सी बात की थी. So now other thing is about empowering. Now अभी मैंने आपको बताया कि फैमिली में क्या है और उस बच्चे के लिए क्या है स्ट्रेटेजी में. अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में सबसे बड़ी चीज है उसकी सरकार ने उसको क्या क्या दिया है. इन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो बनाया है सरकार ने, उसमें इनके लिए क्या क्या है वो भी पेरेंट्स को भी मालूम होना चाहिए, टीचर्स को भी मालूम होना चाहिए, प्रोफेशनल्स को मालूम होना चाहिए, ताकि हम बता सकें कि यू आर एलिजिबल फॉर दिस, तो गो एंड टेक इट. तो इसमें है फ्रीडम टू मेक चॉइस एंड डिसीजन. दे हैव गॉट 100% फ्रीडम लाइक एनी अदर पर्सन आफ्टर 18 इयर्स टू मेक ए चॉइस एंड डिसीजन. अभी कई लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े पढ़ लिख जाते हैं, उसके बाद शराबी बन के अपना पूरा घर सब कुछ बेच देते हैं. दे मेक देयर ओन डिसीजन. आई एम नॉट सेइंग कि हमारे बच्चे ऐसे कर सकते हैं, नहीं, वो ऐसे नहीं करेंगे, बट स्टिल टू सम एक्सटेंट उनको डिसीजन लेने दीजिए. यदि वो गलत डिसीजन लेगा तभी वो समझेगा कि ये डिसीजन गलत था. मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि ये बच्चों को सबसे बड़ी कमजोरी है लर्निंग डिसेबिलिटी, और लर्निंग कैसे होती है डिसीजन लेने से, और सबसे ज्यादा लर्निंग होती है जब आप एक गलत डिसीजन ले लेते हैं. तो यदि आपने कभी उसको गलत डिसीजन लेने ही नहीं दिया, आपने ही हमेशा उसके लिए ठीक डिसीजन लिए, तो बेचारा कहाँ से सीखेगा. तो उसको फ्रीडम टू मेक चॉइस एंड डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज पार्ट ऑफ द एक्ट इटसेल्फ. नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी चाहे वो बच्चा है चाहे बड़ा है, आप उसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूजन, वो जहां पे भी जो भी करना चाहता है वो उसको करने दिया जाएगा. एक्सेप्ट ह्यूमन डाइवर्सिटी. CRPD, UNCRPD है, यूनाइटेड नेशन चार्टर फॉर राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, और हमारा जो एक्ट है, दोनों ये कहते हैं कि डाइवर्सिटी होती है. जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया था, मुझे भी चश्मा लगा हुआ था और मैं भी पायलट नहीं बन सका, तो एक्सेप्ट कीजिए. इक्वल अपॉर्चुनिटी, ही मस्ट गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी, नॉट ओनली इक्वल, स्लाइटली मोर देन इक्वल. इसीलिए गवर्नमेंट ने उनके लिए जॉब रिजर्वेशन की हुई है. 4% जॉब रिजर्वेशन, 5% रिजर्वेशन इन एवरी एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम. होता यह है कि हमें पता ही नहीं होता कि ऐसा उनको एग्जाम के लिए चाहे राइटर की जरूरत है, चाहे एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत है, वो सब दिया जाता है. नाउ दिस इज नॉट गिवन एज ए चैरिटी, दिस इज गिवन एज देयर राइट फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी. तो ये सब पता होना चाहिए. आप कभी ये राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट बहुत बड़ा एक्ट है, उसके ऊपर अलग कभी कोई सेमिनार या वर्कशॉप होगी, आपने किया होगा, तो उसको भी एक बार जरूर अटेंड कीजिए, आपको पता चलेगा. देन जेंडर इक्वेलिटी, ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो फैमिलीज हैं, स्पेशली फैमिलीज विद पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, वो अपनी लड़कियों को बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलने देते. दे आर राइट फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू कि उनको उसकी सेफ्टी बहुत मायने रखती है, पर फिर भी हमें ऐसे इक्वालिटी रखनी है, उनके लिए इतना सेफ एनवायरनमेंट बनाना है जहाँ पे भी, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो वर्कशॉप हो, ताकि वो आ सके. देन रिस्पेक्ट फॉर चिल्ड्रंस राइट, दिस इज इम्पोर्टेंट. भारत में इवन नॉर्मल बच्चे को भी वहां पे ये राइट नहीं दिया जाता. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. एक बार मैं बठिंडा में जा रहा था बस पे, तो वहां देखा कि 2 बच्चे बैठे हुए थे, तो 2 लोग चढ़े, बड़े बड़े तगड़े तगड़े लोग चढ़े,
और उन्होंने बच्चों को देखा और वो बेचारे बच्चे उठ गए और ये बैठ गए। अब यदि आप और किसी भी डेवलप्ड कंट्री में जाएं तो उल्टा है, वहां पे यदि आप 4 साल के बच्चे को देखेंगे तो आप उसको सीट देते हैं। तो रिस्पेक्ट फॉर चिल्ड्रंस राइट इज इम्पोर्टेंट, स्पेशली फॉर दीज चिल्ड्रन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फुल लीगल कैपेसिटी, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एजुकेशन मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम भी कम है। तो इसमें जैसे मैंने आपको बोला कि they can get scribe, they can get extra time, they can use other means, some places even calculators are allowed, so वो सब कुछ है। बट गवर्नमेंट ने ये लिखा है कि उनकी स्पेशल नीड्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए यदि वो इंक्लूसिव स्कूल है, ये नहीं कि उनको जस्ट स्कूल क्लास में बिठा दिया चाहे उसको कुछ समझ रहा है नहीं समझ रहा है। तो वो सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये हो नहीं रही हैं, बट टिल द पेरेंट्स रेज वॉइस तब तक ये चीज नहीं होगी। आई गिव यू वन सिंपल एग्जांपल। अभी हम सब कोविड की वैक्सीनेशन हो रही है, तो जब कोविड की वैक्सीनेशन उन्होंने बोला कि अभी जो कोमॉर्बिडिटीज आएंगी, जिसका ब्लड प्रेशर हाई है, जिसका ये ब्रीदिंग ट्रबल है, उन सबको 45 इयर्स एंड अबव को इंजेक्शन मिलेगा, वैक्सीनेशन मिलेगी। तो हमने बोला कि नहीं, जो ऑटिज्म के बच्चे हैं, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे हैं, इनको भी मिलनी चाहिए। तो उन्होंने बोला नहीं जी, इनको तो कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं है इनको। तो हमने बोला इनको जो प्रॉब्लम है वो अलग प्रॉब्लम है, यदि ये एडमिट हो जाते हैं विद कोविड तो ये अपने आप को अकेले में देखभाल नहीं कर सकते और वहां के डॉक्टर और नर्सेज इनकी देखभाल नहीं कर सकती, तो इनको तो बहुत प्रॉब्लम है, इनकी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो उनको भी इंक्लूड किया गया। तो अभी आप देखें तो कोमॉर्बिडिटीज में 10वीं जो मॉर्बिडिटी है उसमें पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, then those person with disability who have got respiratory issues, then some blood issues, तो उनको किया गया। तो what I'm saying here is that education में सब कुछ दिया गया है, पर हम as a parents और as teachers we have to demand, then only मिलता है। crying babies get more milk, वही हालत है अपने देश में। और चॉइस ऑफ स्कूल जो मैंने आपको बोला था, सेक्शन 31 says कि बच्चा कहीं भी जा सकता है, स्पेशल स्कूल में जाए या इंक्लूसिव स्कूल में जाए। सिमिलरली स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें भी बहुत कुछ देती है सरकार। देयर इज ए स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर देम, देयर इज ए डिस्ट्रिक्ट ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर, ये सब नाम के लिए है, वैसे कई स्टेट्स में बन गया है, केरला में हर एक चीज बन चुकी है, चेन्नई में भी ये सब चीजें लागू हो गई हैं, पंजाब हरियाणा में और यूपी में कुछ भी लागू नहीं हुआ अभी ज्यादा, यूपी में भी अभी थोड़ा थोड़ा शुरू हो रहा है। सो जहां पे पेरेंट्स ज्यादा हल्ला मचाएंगे वहां पे ये सब चीजें जल्दी लागू होंगी। देन जॉब रिजर्वेशन जो 4% मैंने बोला था, उसमें 1% ऐसे उन्होंने 4 दिया हुआ है। हमारे बच्चे जनरली ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी, ये सब 1% में आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद एज रिलैक्सेशन उनको मिलती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। 5% रिजर्वेशन इन हाउसिंग अलॉटमेंट, यदि डीडीए वाले घर बेच रहे हैं और अलॉटमेंट कर रहे हैं तो हमारे बच्चों को 5% उसमें है। 5% इन ऑल पॉवर्टी एलिविएशन स्कीम, अभी मनरेगा आपने सुना होगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसपे प्राइम मिनिस्टर जी ने 2 लाख करोड़ रुपए डाले हैं, उसमें 5% इनको एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए। और यदि आज आप देखें तो इसमें 0.0001% भी नहीं है, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं है। अच्छा, देन 5% इन एग्रो लैंड ऑन कंसेशन, तो बहुत कंसेशन दिए गए हैं। यदि आप आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, स्टेट टू स्टेट आपको रूल्स पढ़ेंगे तो उसमें भी पता चलेगा। Why I'm saying all these things here is because these all finally count in the well-being of the family. Well-being of the family is not only dependent on आपने क्या किया और स्कूल ने क्या किया बच्चे के लिए, it also depends upon कि गवर्नमेंट ने क्या दिया और आपने उसमें से क्या क्या ले लिया गवर्नमेंट से, आपने खड़े होकर उसके कितने अधिकार उसको दिला दिए। That is also part of the well-being. So these are now here last 2-3 things I will like to emphasize here. आप सबको शायद मालूम होगा कि there is an act called Atrocities of Scheduled Caste and Scheduled Tribe Act, जिसमें ये लिखा गया है कि यदि
कोई शेड्यूल ट्राइब भाई हमारा पुलिस में जाके कंप्लेंट करता है कि ये मेरी खिल्ली उड़ा रहे हैं पब्लिक में, ये मुझे पब्लिक में मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, तो उस बंदे को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, उसको जमानत भी नहीं मिलती है। आपको सुन के ये अचरज होगा कि द सेम वर्ड बाय वर्ड सेम थिंग इज देयर इन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आल्सो, बट आज तक किसी ने इसको यूज नहीं किया। मैं चाहता हूं कि हमें यूज ना भी करना पड़े, पर मैं बता रहा हूं कि इतना ऐसी पेनल प्रोविजन है हमारे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में। और इसको ये भी आपको बताना चाहता हूं कि लास्ट अगस्त सितंबर में सरकार इस प्रोविजन को निकालना चाहती थी कि ये डिसेबिलिटी में क्यों रखी है, ये तो बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोविजन है। तो हम सब उसके लिए लड़े 2 महीने तक, परिवार एंड मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस, हम बहुत लड़ते रहे और हमने उसको नहीं निकलने दिया। फाइनली गवर्नमेंट हैड टू बेंड एंड नॉट रिमूव दैट प्रोविजन, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं नहीं वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आती है हमारे देश में, क्योंकि वो कहते हैं कि आपके ऐसे ऐसे फालतू पेनल प्रोविजंस हैं। हमने कहा ये फालतू नहीं है। तो बट व्हाट आई एम सेइंग इज, ये जो प्रोविजंस है, जैसे डंडा जो होता है घर में वो मारने के लिए नहीं होता, सिर्फ डराने के लिए होता है, उसी तरह दीज प्रोविजंस आर आल्सो टू पुट फियर ऑफ गॉड इन द पर्सन जो ऐसे अपराध कर रहा है। I'll not go into this because time is short. Okay, yeah. So I think end here. And मैंने आपको बताया कि वीकेस्ट लिंक, यदि और 5 मिनट है तो मैं एक चीज कवर करना चाहूंगा। मैंने आपको बोला था ना कि मैं ये देखना चाहूंगा इसमें कि मैंने आपको बोला था सेल्फ एडवोकेसी, तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि सेल्फ एडवोकेसी में होता क्या है। जस्ट टेक 5 मिनट्स एंड शो यू 5 स्लाइड्स। ओके, सेल्फ एडवोकेसी इज नथिंग बट टीचिंग द चाइल्ड लाइफ स्किल्स व्हिच ऑल अदर चिल्ड्रन लर्न ऑन देयर ओन। हमारे बच्चे वो नहीं सीख सकते हैं बिकॉज दे हैव लर्निंग डिसेबिलिटी, तो हमें उनको सिखानी पड़ती है। क्या स्किल है वो? सेल्फ अवेयरनेस स्किल, पर्सनल सेल्फ की मैं क्या हूं। हमारे बच्चे ये समझते ही नहीं है कि वो क्या है। उसको यदि आप आईने के आगे खड़ा करेंगे, इफ यू पुट हिम इन फ्रंट ऑफ मिरर, ही विल नॉट इवन रिकॉग्नाइज हिमसेल्फ। ऐसी चीजें भी रहती हैं। मैनेजिंग फीलिंग्स, knowing their rights, knowing their responsibilities, their strengths, you are as good as others। क्योंकि उसको घर से ही इतना धमकाया जाता है कि वो सोचता है कि वो तो एकदम यूजलेस है, किसी काम का नहीं। तो ये सब चीज करवाने के लिए लिसनिंग स्किल्स, सुनना है कैसे लोगों को, मैनेजिंग फीलिंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैसे कब रिस्पॉन्ड करना है कब रिस्पॉन्ड नहीं करना है, क्रिटिकल थिंकिंग, गुड बैड क्या है, इजी डिफिकल्ट क्या है, गुड टच बैड टच फॉर गर्ल्स क्या है, बॉयज के लिए भी क्या है। So these are all the things which we need to teach them, and that is self advocacy, solving small problems, very very small problems. Interpersonal relationship, माँ बाप, उनके साथ क्या रिलेशनशिप है, दादा के साथ क्या रिलेशनशिप है, भाई के साथ क्या रिलेशनशिप है, किसको वो जोक कर सकता है किसको नहीं कर सकता। तो ये सब चीज आपको उनको सिखानी पड़ेगी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आप कैसे बोलेंगे कैसे सुनेंगे। स्मॉल डिसीजन मेकिंग, मैंने आज किस रंग की शर्ट डालनी है, ठीक है, यदि वो लाल रंग की शर्ट और नीले रंग की पैंट डाले तक कोई फर्क नहीं पड़ता, डालने दीजिए, एटलीस्ट उसको डिसीजन की कैपेबिलिटी तो आ जाएगी उसमें। मेंटर्स, नाउ हु डू दिस ट्रेनिंग इज डन बाय द मेंटर्स। मेंटर्स को भी ट्रेन किया जाता है। हु आर द मेंटर्स? पेरेंट्स, सोशल वर्कर्स, टीचर्स, प्रोफेशनल्स, वॉलंटियर्स। परिवार, हम उनकी मेंटर ट्रेनिंग करते हैं। इट इज ऑल अ फ्री ट्रेनिंग एंड एट दैट then they conduct this self advocacy. This self advocacy training is conducted all in practical form. There is nothing writing or reading or a slide show, कुछ नहीं है ऐसा। सब कुछ उनके साथ मिलके गेम्स खेल के उनको ये सब कुछ सिखाया जाता है। सो ये प्लीज आप करवाइए, अपने स्कूल में शुरू कीजिए, अपनी इंस्टीट्यूशन में शुरू कीजिए। दैट इज द ओनली वे these children will learn and come back, and where the family will be happy and you all will be happy, and you can make a wellness strategy out of it. So I stop here. Thank you very much. आप सबने मुझे सुना, almost कितना एक सवा घंटा सुना आपने, and now Priya and myself, we are ready to answer any of your questions.
थैंक यू वेरी मच सर। बहुत ही विस्तृत जानकारी आपने प्रदान की, और सिर्फ स्ट्रेटेजीज के बारे में भी नहीं, कि भारतवर्ष में जो दिव्यांगजन हैं और खासतौर से पर्सन विद इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज, उनकी क्या हालत है, तो उसके बारे में जो आपने बताया वो बहुत ही आवश्यक था कि जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं उनको इनके बारे में पता होना चाहिए। जो हमारे एक्ट्स हैं उसमें क्या क्या प्रावधान है उनमें वो भी उनको पता होना चाहिए। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी आई है उसमें दिव्यांगजनों के लिए क्या क्या बातें कही गई हैं, क्या क्या उनके लिए सुविधाएं प्रदान की गई हैं, उनके बारे में भी मालूम होना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच सर। सेल्फ, वो कहते हैं ना कि चैरिटी बिगन्स एट होम, कि अगर मैं सेल्फ एडवोकेसी जो है उसकी आवश्यकता इसीलिए भी होती है कि अगर मैं अपने आप, वो दूसरी बात ये कहते हैं कि माँ भी तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं है। तो अगर इन बच्चों के अंदर हम सेल्फ एडवोकेसी और फैमिलीज के अंदर एडवोकेसी की भावना जागृत कर दें, तो ये फैमिली वेलबींग के अंदर इट कैन बी वन ऑफ द स्ट्रेटेजीज। एक तरीका हो सकता है, एक नीति हो सकती है, एक प्रयास हो सकता है कि सेल्फ एडवोकेसी के द्वारा बच्चों, परिवार अपना और अपने बच्चे का वेलबींग, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी देखभाल, अच्छा रहन सहन उपलब्ध करा सकता है। सो सर, थैंक you very much, sir, once again for the comprehensive talk. Now the house is open for. I'll request Alok ji to unmute everybody, and I think a few hands were raised. Yeah. तो वो सवाल पूछ सकते हैं. Mahajan, you have raised your hand. Could you please ask your question? Diksha Mahajan. दीक्षा महाजन की अगर आवाज सुन रही हो. Okay, and yes, Diksha जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं. Okay, can I go for the next? सर एक वो गोविंद सिंह गुज्जर जी हैं. Okay, Gobind Singh Gujjar ji, you can ask your question. I have unmuted yours. Yeah. Ji Gobind ji. Okay, Parmar, then Shama Shamangiria. Tannu. Yeah. Yes, sir. I am Shamangira. Yeah, sir. सर मेरे 2 क्वेश्चन है. फर्स्ट तो ये, मैं ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रही हूँ पश्चिमी जयपुर में. इसमें कुछ बच्चे एक्चुअली, जैसे गवर्नमेंट ने नीति निकाल रखी है कि बच्चे 5वीं तक या 6ठी तक फ्री ऑफ चार्ज और पास आउट होंगे. तो हमारे संग समस्या ये आती है कि अर्ली इंटरवेंशन में बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं लंबे समय तक, है ना, और फिर उसके बाद में जब वो फेल होते हैं 8th में या 10th में, तब माँ बाप को ये रियलाइज होता है कि ये तो मतलब किसी बात से विवादित है या ये चीज नहीं पढ़ सकता है. तो उनका अर्ली इंटरवेंशन के टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो निकल जाता है गवर्नमेंट स्कूल्स में. फिर हम ऐसी स्थिति में क्या करें? मतलब हम गांव जाके उनको समझाते हैं और फिर वो ये कहते हैं कि नहीं भाई 6ठी तक तो पास ही हुआ है बच्चा, पास आउट हुआ है. कैन यू हेयर मी सर? आप सुन रहे हैं मेरी? I can hear you. आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है? हाँ सर, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि कुछ मेरे पास अनडेवलप्ड बेबी आए हैं, जैसे जिनके फिंगर्स डेवलप नहीं है या हैंड डेवलप नहीं है, ईयर डेवलप नहीं है. तो उनके लिए, पेरेंट्स के लिए मेरे को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो बनवाने में बहुत प्रॉब्लम आती है. एक मदर ने तो एक बच्ची का लेग टेढ़ा था तो कटवा ही दिया डिसेबिलिटी में उसको करने के लिए. मतलब पेरेंट्स, क्योंकि फैसिलिटीज मिलती है डिसेबिलिटी की उनको, जैसे हमने अवेयर किया तो मेरे को बड़ा दुख हुआ कि हम ऑक्यूपेशनल से या उससे उसको सही कर सकते थे. लेकिन अनडेवलप्ड बेबी, जैसे फिंगर्स नहीं है उसके हैंड में या हाथ छोटा है वो है, तो वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी में करने के लिए पेरेंट्सों ने कुछ नहीं, में जो मैंने बाद में सिचुएशन देखी तो उन्होंने ऐसा, तो इसकी अवेयरनेस के लिए भी हम लोग वर्क कर रहे हैं. लेकिन अनडेवलप्ड बेबीज के लिए भी हम लोग कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम आपसे कुछ सलाह चाहते हैं सर. तो शमा, मैं फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है उसमें आपने पूछा कि ये जो बच्चे
8th कर लेते हैं और उसके बाद पता चलता है कि हाँ मुश्किल है, तो हाँ, सेरेब्रल पॉल्सी है या वो है। तो ऐसे बच्चे जो हैं, एक तो है यदि उनकी फिजिकल डिसेबिलिटी है तो वो तो शुरू से ही पता चल जाएगी कि उनकी जी सर। सेरेब्रल पैल्सी तो यदि 6 साल का बच्चा होगा तो तब भी पता चल जाएगी। जी जी सर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में दिक्कत आती है। हाँ, पर जो 8th के बाद जैसे पता चला या आपको लगा जी कि सर। बहुत पीछे पड़ रहा है बच्चा, तो ऐसे बच्चों को जनरली SLD कहते हैं, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसमें डिसलेक्सिया और ऐसी तरह की कई अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, वो हो सकती जी है। सर। तो इन बच्चों के लिए इवन जो हमारे सिद्धांतों में दिया गया है वो यही है कि 12-13 साल के उम्र में स्कूल से सर्टिफिकेट लेके उसके बाद इनको किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जहाँ पे साइकेट्रिस्ट है उसको दिखाया जा सकता है, और यदि वो उससे बात करके उस बच्चे को देख के उसको यदि SLD का सर्टिफिकेट देंगे, जिसको कहते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट देंगे, तो फिर ये बच्चा अपना NOIS में जो उसको सब्जेक्ट चाहिए नहीं चाहिए ऐसे सब्जेक्ट्स में वो आगे बढ़े, प्लस उसको बाकी भी कुछ अलग अलग कंसेशन मिलेंगे। यदि उसको मैथ्स नहीं आ सकता, यदि फिगर्स नहीं आ सकते, क्या डिसकैलकुलिया है, तो उसको मैथ्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ऐसे उसको कुछ कंसेशंस मिलेंगे। तो आप ऐसे पेरेंट्स को बोलिए कि उन्होंने निराश नहीं होना है। यदि बच्चा बहुत पीछे पड़ रहा है तो उन्होंने स्कूल से सर्टिफिकेट लेना है कि ये समझ नहीं रहा या इसको क्लास में बहुत पीछे पड़ रहा है ये, और फिर स्कूल किसी हॉस्पिटल में जाके साइकोलॉजिस्ट को दिखाइए। थैंक यू। ये तो आपका पहला हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज वेरी सीरियस क्वेश्चन। उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट आजकल हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर खोल रही है। जी सर। तो अभी जो हमारे 650 डिस्ट्रिक्ट्स हैं कंट्री में, उसमें मुझे लगता है अबाउट 150-200 डिस्ट्रिक्ट्स में अर्ली इंटरवेंशन सेंटर ऑलरेडी आ गए हैं। तो आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है? सर मेरा बस्सी पड़ता है, जयपुर। बस्सी पंजाब में? नहीं सर, राजस्थान, जयपुर। अच्छा, जयपुर में। तो बिकॉज आई एम आल्सो प्रेसिडेंट ऑफ परिवार, मैं आपको 1-2 नंबर दे दूंगा, आप मुझे बाद में व्हाट्सएप कर देना या आप मुझे ईमेल भेज दीजिए। मैं आपको 2-3 नंबर दे दूंगा जहां आपको बताया जाएगा कि आपने किसको कांटेक्ट करना। द मोमेंट यू कम टू नो कि कोई बच्चा है एकदम छोटा है, उसको कोई डिसेबिलिटी है, आइदर बिकॉज ऑफ बाय बर्थ डिसेबिलिटी है, जिसको आपको मालूम होगा ना कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है स्पेशली रूरल एरिया में, तो उसको वेदर देयर इज अ डिफेक्ट, डिसेबिलिटी, डिसीज, ये डीज के लिए उसको देखा जाता है। आंगनवाड़ी या ANM जो है नर्सिंग, उन्होंने देखना होता है। सर ANM वगैरह को भी हम लोगों ने ही ट्रेन किया है एक्चुअली वहाँ पे। गुड, यदि आपने ट्रेन किया तो बहुत अच्छा है। तो वो आपको ये जो मैं आपको सुदीप गोयल का नंबर दे दूंगा, जो कि हमारे राजस्थान के परिवार के वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो आपको वो गाइड करेंगे कि कहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट के अनुसार कहाँ पे आपको अप्रोच करना है ऐसे बच्चों के। इनके लिए अर्ली इंटरवेंशन इज मोस्ट एसेंशियल, इट इज लाइक ए गोल्डन पीरियड फॉर देम। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। तनु गेरा। Okay, sir, I just want to ask, first of all, like wonderful presentation was given by you. I got many new things about the ratio of disability and all. I just want to ask one thing. So I'm working in a school as a psychology teacher. I have done MPhil from NIPIT Secunderabad from in 2009. So I just want to ask, like, how can I, involve myself into the field of disability? Like, can you guide me? Like, how can I work? Because I want to be in touch of this disability rehabilitation, where in schools I'm not getting such opportunities. Yeah, ठीक है तनु जी, very good to hear you. And आपने क्लिनिकल साइकोलॉजी में किया होगा ना? No, I have done MPhil in rehabilitation psychology from NIPIT Secunderabad. आपकी बहुत जरूरत पड़ती है स्पेशली काउंसलिंग वगैरह के लिए, पेरेंट्स के लिए। तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपको बताएंगे कि आप आगे कैसे, मतलब which should give you also job satisfaction, money satisfaction, as well as it should help the society, जहाँ पे ऐसे बच्चों को जरूरत होती है। हमारे भारत में हैंडशेक जो है ना, वो नहीं होता। आप जैसे प्रोफेशनल हैं जिनको जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है, और देयर विल बी बच्चे जिनको आप जैसे प्रोफेशनल नहीं मिल रहे, तो विल ट्राई एंड आपका हैंडशेक करवाने के लिए विल डू दैट। Thank you so much, sir. Sir, we have one question in chat box. Madam Diksha Mahajan.
Sir, I wanted to ask, what are the strategies to give the society to change their attitude towards disability? Even grandparents does not want to send the children for counseling and special education. देखिए, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, आप उसको, यदि आप उस फैमिली को जानते हैं तो आप उसको काउंसलिंग मत कहिए। इंडिया में ये जो काउंसलिंग वर्ड है वो फैमिली में सुनते ही सबके होश हवास उड़ जाते हैं, सब सोचते हैं कि पागल, कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो गई है। आप बोलिए कि बातचीत करनी है, यहाँ आप बोलेंगे बातचीत करनी है तो बातचीत करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी बेस्ड ऑन द सोशल सेटअप ऑफ द फैमिली। तो जनरली हम यही कहते हैं, हम हमेशा एडवाइस करते हैं पेरेंट्स को कि अपने जो मतलब ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, उनको आप इस हिसाब से बताइए कि वो एकदम बिल्कुल अलर्ट ना हो जाए कि नहीं नहीं ये तो हो ही सकता है, ऐसे कैसे हो गया। देयर आर वेज एंड मीन्स ऑफ ब्रेकिंग न्यूज़। तो न्यूज आपको वैसे ही ब्रेक करना है। उसी तरह जैसे हम तो इवन देयर आर लॉट ऑफ मदर्स हु फेस डोमेस्टिक वायलेंस बिकॉज ऑफ दिस कोविड, मेनी मदर्स एंड फादर्स। तो उनको भी हम यही कहते हैं कि आप बातचीत करो। टिस वालों की एक बड़ी अच्छी हेल्पलाइन है, हम कहते हैं इसमें फोन करो और बातचीत करो, काउंसलिंग का कभी नाम नहीं लेते। गोविंद सिंह जी प्लीज अनम्यूट करिए, पूछिए अपना सवाल। आपका म्यूट है। गोविंद जी बोलिए प्लीज। मधु जुनेजा ने भी हाथ उठाया था। मधु जी। हाँ जी सर, मैंने प्लीज मैंने अनम्यूट कर दिया। अच्छा, थैंक यू आलोक जी फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस ऑन अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म। श्रीरंग जी, मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। मैं मेंटल हेल्थ, पहले मैं स्कूल में पढ़ाती थी 20 साल, अब मैं पिछले 20 सालों से मेंटल हेल्थ वॉलंटियर हूँ। मैं फैमिलीज के साथ बहुत काम करती हूँ। मैं चाह रही थी कि हमारी कोई केयर गिवर बेसिक ट्रेनिंग नहीं है। ये मुद्दा मैंने पहले भी कई मीटिंग में रेस किया है। आई नो ये एक स्किल है जो कि अपने आप आता है, मतलब आपकी पर्सोना कैसी है, आप एम्पैथेटिक है कि नहीं, लेकिन कहीं भी आरसीआई में हो भी नहीं है एक बेसिक केयर गिवर ट्रेनिंग। जो सारी बातें आपने आज जो मेंशन की, आप परिवार की, आपकी बॉडी है, इज इट पॉसिबल कि हम कुछ इस लेवल, एक बहुत बेसिक लेवल पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? मधु जी, यू हैव एक्चुअली हिट द नेल ऑन द हेड। हम भी इसी चीज से तंग हैं कि बेसिक ट्रेनिंग फॉर केयर गिवर इज नॉट अवेलेबल ऑल ओवर इंडिया एनीवेयर। अभी जब मिनिस्ट्री ने प्रस्ताव भेजा कि हम एक नई डिसेबिलिटी यूनिवर्सिटी खोलने वाले हैं, डिसेबिलिटी स्टडीज की, तो यही लिखा कि ये बेसिक कहाँ से होगी। आरसीआई की जब अभी ये लास्ट 2 वीक पहले गोवा में बैठक हुई, वहां पे भी हमने यही बोला है कि आप बाकी सब ट्रेनिंग को छोड़ दीजिए, ये बताइए कि केयर गिवर, स्पेशली जो लिटिल विद हाई सपोर्ट नीड्स, इन लोगों के लिए जो केयर गिवर करनी है ये कैसे करेंगे। सी अर्लियर नेशनल ट्रस्ट हैड ए स्कीम, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, बट देयर वाज सहयोगी, पर उसमें क्या था, 6 महीने की ट्रेनिंग। अभी which residential center, I am attached with 4 residential center, हम किसी को स्पेयर ही नहीं कर सके कभी 6 महीने की। सही बात। So what we are telling them is caregiver, like Madhu ji is saying, mostly it is learned on the job, but then there are many finer points, and the quality of that caregiving can only come through that. तो इसके लिए हम भी पीछे पड़े हुए हैं, but let's see, RCI के साथ अभी मिलके it should come within this year. I think we should be able to conduct, we should start this caregiving 15 days, 1 month, ऐसे छोटे छोटे courses हम start करेंगे। But within Parivar network, we have been doing it. Like in Pune, there are 4 centers. तो चारों सेंटर, एक सेंटर हर साल 1 हफ्ते की ट्रेनिंग करता है। I am talking about the residential center, and persons from other centers are invited. 15-20 लोग आते हैं, and then they sit together. थोड़ी theoretical, थोड़ी practical training उनकी होती है। So I like to be involved. As in when you do this, मुझे भी involve कर लेना। Yeah, sure. आप कहाँ पे? Where are you located? I'm in Delhi. Okay, good. Madhu ma'am, she is very active volunteer. So we will definitely. Thank you sir. आलोक सर यहाँ पर एक प्रश्न मेरे दिमाग में उठ रहा था कि केयर गिविंग की जब हम ट्रेनिंग करते हैं,
इसके अंदर हमारे को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि बच्चे रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर, मतलब जो भी ट्रेनिंग्स है वो रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर क्लाइंट्स के साथ में काम करें, पेरेंट्स के साथ में काम करें। तो ये जो डिस्टेंस मोड में अगर हम करते हैं तो वो फिर कैसे हो पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए इट हैज टू बी अ रेगुलर प्रोग्राम, और जो इंटरेस्टेड पीपल हैं उनको 3 महीने या 6 महीने जो भी प्रोग्राम हम बनाते हैं उसके अंदर आना पड़ेगा और ज्वाइन करना ही पड़ेगा। थैंक यू सर। यस प्लीज। What you are saying is absolutely right. थैंक यू सर। Yeah, Namrata madam, you want to ask? एक चीज मैं ऐड करना सर मैं ये कह रही थी, हम लोग तो ऑलरेडी 2007 में हमने शुरू किया था केयर गिवर्स ट्रेनिंग, लेकिन वो फिजिबल नहीं रहा किन्हीं कारणों से। क्या आप थोड़ा हाईलाइट करेंगे क्यों हम लोग उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए केयर गिवर्स ट्रेनिंग? I think बिजूर सर, I think you will be aware, जब पूनम नटराजन जी थी उसके बाद तभी ही केयर गिवर ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ था कंट्री में। एंड देन वी हैड द पायलट प्रोजेक्ट इन दिल्ली, और उसमें हम लोगों ने काफी अच्छा, जो हमारा फर्स्ट बैच और सेकंड बैच था वो काफी अच्छा था। लेटर ऑन इट वेंट टू द RCI फॉर सर्टिफिकेट कोर्स डेवलपमेंट एंड ऑल, तो वो सर्टिफिकेट कोर्स तक भी बन गया। उसके बाद पता नहीं इस कोर्स की वैल्यू नहीं रही, मार्केट वैल्यू नहीं रही, या फिर एक सोसाइटियल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं हो पाई। फिर ये कोर्स कहीं ना कहीं इस तरह से हो गया कि जिस व्यक्ति को RCI का सर्टिफिकेट चाहिए, CRR नंबर चाहिए, वो आते थे। तो फिर लास्टली वी थॉट कि जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स है, वी आर नॉट एबल टू फुलफिल इट, just to giving the certificate is not my answer to these things, so we have closed it down and let us wait कि कोई नया सा ऐसा कुछ स्कीम्स आए, then we can see it. एंड मुझे लगता है सर, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली हमारे ट्रेनर्स को ट्रेनिंग के बाद, इसलिए ये कोर्स बंद हो गया बीच में। I'll give you the underlying reason. जी जी। Because I am associated with the 4 residential centers, starting from very down to earth to quite hi-fi center. So I'll give you the reason. First and the foremost is residential center में जो care giving के लिए आते हैं, they are the last of the lot. जिसको कहीं भी और नौकरी नहीं मिलती है, वो बेचारा वहाँ पे आ जाता है। और 90% of them are illiterate. तो यदि आप सोचेंगे कि आप उनको क्लासरूम ट्रेनिंग दे सकते हैं तो वो थोड़ा मुश्किल है। उनको लिखना पढ़ना मोस्टली लोगों को नहीं आता है, यदि आता भी है तो उनको बिल्कुल अपना, जैसे यदि महाराष्ट्र में है तो उनको मराठी थोड़ी लिखनी पढ़नी आएगी, हिंदी और इंग्लिश तो उनको बिल्कुल नहीं आएगी। बिकॉज ओनली सच पीपल आर कमिंग इन द केयर। उसका रीजन ये है कि क्योंकि हमारे, अभी तक मैं आपको बताऊं, देयर इज अ सेंटर वेयर आई एम आल्सो अ ट्रस्टी, निर्धार प्रतिष्ठान करके है, विच इज नियर मुंबई, विरार, यदि आप जानते हैं, देयर। वहां पे केयर गिवर को पे दी जाती है 4,500। हाउ द हेल यू कैन एवर गेट अ पर्सन हु इज इवन 8th पास टू कम फॉर 4,500 रुपीज और 5,500 रुपीज? तो ऐसे केयर गिवर जो हैं इनको आप, और बट लेट मी टेल यू, सम ऑफ देम आर वेरी गुड केयर गिवर्स, एक्सीलेंट केयर गिवर्स। हमारे पास एक केयर गिवर है जो 18 साल से है वहां पे, एंड टुडे ही इज द इंचार्ज, थोड़ा लिख पढ़ भी लेता है वो। But all the 8 caregivers who are there are all unpad. None of them has done. तो यदि आप अपनी क्वालिफिकेशन 10th रख देंगे तो फिर एक्चुअल केयर गिवर तो उसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। जो आएगा आपके पास केयर गिवर, उसकी एक्सपेक्टेशन हाई हो जाएंगी, वो बोलेगा मैं 6,000 8,000 की जॉब में क्यों जाऊं, और फिर तो वो ऐसा काम भी नहीं करेंगे सर। हाँ जी, वो ऐसा काम भी नहीं अगर ज्यादा पढ़े लिखे होते वो ऐसा काम भी नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो यही, so that is, it's basically a mix and match problem. The kind of caregivers, people whom we get it and who get ready to do that job, वो जो ट्रेनिंग है उनके हिसाब से नहीं बनी है। तो अभी हम RCI को यही कह रहे हैं कि there should be no qualification. ठीक है, आप बोलिए कि 5th स्टैंडर्ड तक पढ़ा हो, वो तो आजकल आप कोई भी स्कूल का नाम ले लेगा तो उसको 5th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट मिल जाता है। So 5th स्टैंडर्ड हो, but if a person who is already employed somewhere, he should be just taken, आंख बंद करके उसको आप ट्रेनिंग के लिए ले लीजिए और उसको सर्टिफिकेट भी दीजिए। एटलीस्ट he will value that certificate more than anybody else. So ये सब चीजें हम RCI को कह रहे हैं और उनके पीछे पड़े हुए हैं हम इसी के। सर यहाँ पर मैं एक सबमिशन करना चाहूंगा कि 92 में RCI एक्ट बना और तभी रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बनी, तब से लेकर के अब तक लगभग 125 से ज्यादा कोर्सेज RCI डेवलप कर चुकी है।
और उसमें से अभी सिर्फ 62 के 63 कोर्सेज जो है वो ऑपरेशनल है, बाकी सब बंद हो गए। तो मेरा निवेदन ये रहेगा कि आप जब कभी भी जाते हैं तो पहले जो कोर्सेज हम बना रहे हैं, लेट अस लुक फॉर द जॉब मार्केट, कि उसमें किन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, कौन से लोग लेंगे। तो सिर्फ हमको इन ए फ्लो दैट वी हैव टू डेवलप कोर्स एंड लॉन्च इन द मार्केट हमको नहीं करना चाहिए जब तक हम उसकी, इसीलिए ये जो केयर गिवर्स कोर्स है ये बंद हुआ, क्योंकि हमने इसको प्लान नहीं किया कहाँ पर इसकी आवश्यकता पड़ेगी, कैसे इसको होगा। ऐसे ही एक BRT कोर्स हुआ था, BMR कोर्स हुआ, 2-3 साल चले लोगों को, और उन बच्चों को फिर दूसरे कोर्सेज करने पड़े टू कम इनटू द जॉब मार्केट। तो ये हमको अवश्य देख लेना चाहिए कि जो भी कोर्स हम डेवलप कर रहे हैं, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कोर्स in terms of employability of the persons undergoing this course. Thank you, sir. Good suggestion. Yeah. Okay. Parmar ji. हाँ, परमार पारस जी. Parmar Paras ji. Yes, please. राशल जी. हाँ जी. Yeah. सुन रहे हैं आप मेरे को? जी. Yes, please. बोलिए. ओके. मैं भावनगर गुजरात में से बोल रहा हूँ, अंकुर स्पेशल स्कूल में से. पारस भाई केम छो? बस मजाમાં. તમે કેમ છો? सब मजाમાં. मारा બે क्वेश्चन છે, मेरे 2 क्वेश्चन है. पहले आईडी बच्चों के एम्प्लॉयमेंट के बारे में. हेलो जी बोलिए. हाँ, उसमें ऐसा है कि अभी गुजरात हाई कोर्ट में एक रिक्रूटमेंट आई थी, उसमें डिसेबिलिटी बच्चों के लिए जो रिक्रूटमेंट थी उसमें आईडी का कोटा नहीं था. RPF के अनुसार 4% रिजर्व है, लेकिन इसमें वो कोटा नहीं था, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन में गुजरात कहीं पीछे है, ये मेरे को जानना है. Sir, Bijur sir, got the question? No, I couldn't get it. Yeah. So in the Gujarat High Court, there was the appeal regarding the employment of persons with intellectual and developmental disability. They have not considered it. Okay. And even it is under the RPD Act, it has 1% specifically given to them, but they have not. The Gujarat has not considered it. So why it has done? What to do for that? परमार जी, मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए I cannot give you any answer here, but हमारी वहाँ पे एक पूजा पटेल करके है, very active lady, शायद आप उसको जानते भी होंगे, राजकोट. हाँ, पूजा. हाँ, मैं जानता हूँ उसे, पूजा बहन. हाँ, राजकोट के हैं. हाँ, राजकोट के हैं, तो उनको कांटेक्ट कीजिए, और यदि उनसे भी कुछ नहीं होता तो मेरे पास आएगी, तो मैं आपको फिर देखेंगे क्या करना है. ओके. दूसरा क्वेश्चन ये है सर, आपने एट्रोसिटी एक्ट के बारे में बात की थी, SC/ST के बारे में. या हेलो. हाँ जी, बोलिए. उसमें अगर हमें, उसमें यहाँ गुजरात में काफी सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत बैड वर्ड यूज करते हैं हैंडीकैप के लिए. ये लंगड़े हैं, उसे मफत में दिए जाते हैं, ऐसे शब्द यूज करते हैं. तो उसके बारे में हमें कोई भी कंप्लेन करनी है तो कैसी प्रोसेस करनी है, वो मेरे को जाननी है. उसके लिए आप ऐसे कीजिए, हमें लिखिए, हम आपके पास RPWD एक्ट की कॉपी है क्या आपके पास? हाँ, है मेरे पास है कॉपी ना. तो उसका नंबर मैं आपको बता दूंगा, अभी तो नहीं बता सकता हूँ, पर मैं आपको बताऊंगा. सेक्शन क्या है ये नंबर. हाँ, तो वो RPWD एक्ट लेके जाइए पुलिस स्टेशन में, उनको बोलिए कि थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दें, और जो भी पार्टी ऐसे कर रही है आके समझा दें. इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका FIR दर्ज कर रहे हैं, हालांकि आप FIR कर सकते हैं और पुलिस को भी करना पड़ेगा, पर दैट इज एक्सट्रीम थिंग. उससे आपके लोग ज्यादा अगेंस्ट हो जाएंगे इंस्टेड ऑफ बीइंग फॉर. पर आप पुलिस वालों को समझा दीजिए कि ये भी एक एक्ट है, SC/ST एट्रोसिटी वाला एक्ट ही, उसी टाइप का एक्ट है ये भी, उसमें भी वही प्रोविजन है, और थोड़ा उनको समझा देंगे. ओके सर, विद योर परमिशन. सर, विद योर परमिशन सर, एक और इसका आसान तरीका बहुत है. एक सिंपल पेपर के ऊपर ये अपनी शिकायत लिख करके नामजद कंप्लेन कमिश्नर डिसेबिलिटीज को कर सकते हैं. स्टेट कमिश्नर फॉर डिसेबिलिटीज जो है उनको लिख सकते हैं, तो फिर उनकी बात बन जाएगी कि वो आगे किसको बुलाते हैं और कैसे करते हैं. अच्छा. कमिश्नर डिसेबिलिटीज जो है आपके स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटीज है, उनको लिख देते हैं. अगर वहां से भी एक्शन नहीं होता है
तो चीफ कमिश्नर डिसेबिलिटी जो दिल्ली में, उनको आप लिख सकते हैं। तो वो बाकायदा कोर्ट लगाते हैं और कोर्ट में उनको इनवाइट किया जाएगा, वहां पर उनके केस जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा सब। और एक क्वेश्चन है, हमारे गुजरात में 21 डिसेबिलिटी है, उसके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं निकल रहे हैं अभी तक। ये आपको वहीं पे पूछना पड़ेगा किस लिए नहीं निकल रहे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में नहीं निकल रहे हैं। तो दिस इज ए वेरी डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक। पर आप बात कीजिए ना, पूजा पटेल से बात कीजिए, वो आपको बताएगी क्या करना। ओके पारस भाई मैं आपको बताऊं कि इवन दिल्ली में भी अभी 21 डिसेबिलिटीज का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट नहीं बन पा रहा है। तो अभी तो धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम लगेगा हर स्टेट में इसका पूरा गाइडलाइन इम्प्लीमेंटेशन होने में। बट एज ए प्रोफेशनल आप जब इस सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट के लिए क्या क्या चीज जरूरी है, कौन सा डॉक्यूमेंट, पहली बात। और दूसरी बात है कि आपका वो एक गाइडलाइन निकला हुआ है कि डिसेबिलिटी को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे सर्टिफाई करते हैं। अगर लर्निंग डिसेबिलिटी है तो कैसे सर्टिफाई करते हैं, तो उसको भी आप लोग पढ़िए और वो गाइडलाइन लेकर आप जा सकते हैं स्टेट हेडक्वार्टर में या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में। तो शायद उस डॉक्टर को भी पता चले कि हाँ ऐसा कुछ है, तो वो उसको इम्प्लीमेंट करना या उसके प्रति जागरूक होना स्टार्ट करेंगे। सर यहाँ भावनगर में जो पुरानी डिसेबिलिटी, हेलो जी परमार जी एक मिनट सुन लीजिएगा कि जो ये पीडब्ल्यूडी एक्ट बना है, ये बना है राष्ट्रीय स्तर पर, और शिक्षा हो, हेल्थ हो, वो सब राज्य की जिम्मेदारी होती है। तो जो ये एक्ट बना है इसको ध्यान में रखते हुए प्रत्येक सरकार, राज्य सरकार जो है वो अपने बायलॉज बनाती है, एक्शन प्लान बनाती है, बायलॉज बनाती है। तो दिल्ली के अंदर एक्ट पास होने के बाद में कम से कम 2 साल लगे बायलॉज बनने के अंदर। तो अभी दिल्ली में 21 हॉस्पिटल्स को उन्होंने नोटिफाई किया है जहां पर जाकर के आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं, और उनमें से 11 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं नोटिफाइड जहां पर आप किसी भी डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो अभी भी वो जो 21 हॉस्पिटल नोटिफाई किए हैं उसके अंदर सभी डिसेबिलिटीज का सर्टिफिकेट नहीं मिलते हैं। तो हो सकता है आपके राज्य सरकार ने, मतलब गुजरात सरकार ने उनके बायलॉज बनाए या नहीं बनाए हैं, तो उनकी साइट पर जाकर के आप पूछिए और देखिए कि कौन कौन से हॉस्पिटल्स उन्होंने नोटिफाई किए हैं, कौन कौन से मेडिकल ऑफिसर्स उन्होंने नोटिफाई किए हैं। वहां जाकर के जो मेडिकल बोर्ड है उसके सामने आप जाकर के रख सकते हैं और वहां से आपको सर्टिफिकेट मिल सकते हैं। धन्यवाद सर। ओके थैंक यू। Okay, can we bind up for the next? Yes. Yeah. Gupta. सर एक बार पुनः मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा फॉर दिस कम्प्रिहेंसिव, एनलाइटनिंग, आई ओपनर प्रेजेंटेशन। हाँ जी मैम, मैं तनुगेरा बोल रही थी मान स्कूल से। गुड आफ्टरनून। आप उसकी सिस्टर बोल रहे हैं, मदर बोल रहे हैं दिया की? हाँ, मैं बस ये पूछ रही थी कि पढ़ रही है ना, थोड़ी वीक है। जी बोलिए सर। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और सर जी बोलिए। तो कुछ कहना चाहते हैं, कहिए ना आप पहले। नहीं, मैं बिजूर सर को यही कहना चाहूंगा कि मोस्ट अवेटेड विजिट था मनोविकास का और इट वेंट ऑन वर्चुअल, सो थैंक यू वेरी मच सर। और हम लोग जैसे मशवरा और मन भावन के थ्रू बहुत सारे पेरेंट्स एसोसिएशन से जुड़े हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो मैं चाहूंगा कि अभी तो मशवरा बंद है लेकिन मन भावन है, तो मन भावन में और भी हम लोग जितने भी बच्चों का खुशी दे सकते हैं, जितने भी उनकी हैप्पीनेस ला सकते हैं, तो प्लीज सर आप उसको थोड़ा सा अपने लेवल पे भी थोड़ा सा उसको स्प्रेड कराइएगा। जरूर, वी आर ऑलवेज विद यू। जब भी आपको किसी भी हमारी जरूरत पड़ती है, वेदर फॉर इंफॉर्मेशन और फॉर लेक्चर और एनीथिंग, वी कैन गेट यू दैट डेफिनेटली। वी आर ऑल फॉर पेरेंट्स। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, तो विद दिस एक बार पुनः सभी ऑडियंस का और हमारे एलीट स्पीकर का मैं धन्यवाद करते हुए ये सेशन को यहाँ पर मैं क्लोज करूंगा, एंड विल बी बैक एट 13:40, 1:40 पर हम लोग वापस यहाँ आ जाएंगे लंच के बाद में। तो फिर हमारा तीसरा सेशन शुरू हो जाएगा, थर्ड का, जिसमें फिजिकल वेलबींग और सोशल वेलबींग के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू ऑल। So thank you very much sir, thank you. Please join by 1:45
एंड आप इस बीच में मैंने सर 1:40 का टाइम दिया है इसलिए जी 1:40 प्लीज। और आपको जो सेशन वाइज इवैल्यूएशन सीट है सेकंड दिस सेशन का, वो हमने शेयर कर दिया है आपके चैट बॉक्स में। आप उसको फिर से भरेंगे सेकंड सेशन के लिए, फिर से नहीं मतलब सेकंड सेशन के लिए आप भरेंगे और भरिए। थैंक यू वेरी मच। सो वी विल बाइंड अप फॉर नाउ and then we are meeting again at 1:40. Thank you. Thank you Gupta sir. Thank you Namrata madam. थैंक यू सर। फीडबैक मेरे को तो नहीं भरना है ना? नहीं आपको क्यों भरना है, आप तो देंगे। ठीक है सर, थैंक ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच सर। मिलते हैं फिर 1:40 पर। जी। ओके।